Assalamualaikum everyone. Welcome to another round of our exciting workshop on useful tools for small business owner. In this session, we have partnered with students from Jinnah Women University and is brought to you all by Circle Women Pakistan, whose mission is to advance women's economic participation and empowerment through innovative entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Frederick Naumann Foundation for Freedom, FNFF, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the fields of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session on digital marketing will be conducted by a very talented trainer, Talat Zubair, who is a computer science graduate from IBA Karachi and an inspiring data scientist, working towards her aim to leave a positive impact in the lives of individuals who co-founded Learnovate to make it possible for children to improve in their academics as well as discover and learn new skills with relatively fewer resources. She has worked at the Institute of Behavioral Psychology to assist children with learning difficulties and has also worked with UNDP's Women in Entrepreneurship program. I'd like you to welcome Ms. Talat, who is here with us. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamualaikum. Yeah, can you all hear me? Just can you please confirm if you can hear me? Talat, आवाज आ रही है. Okay, perfect. And I also wanted to tell you कि जो students हैं वो एक classroom setup में हैं. मैं आपसे कहती हूँ कि video please on कर लें. Okay. Right. All right. तो ठीक है, फिर हम start करते हैं. अच्छा, मैं थोड़ा सा overview दे दूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं. So we'll be talking about some useful tools. I'll be giving you a hands-on practice if you have your laptops with you. ठीक है, तो आप जो है वो उनको निकाल कर उनसे start कर सकते हैं practice. But if you don't, that's all right. You can take notes and you can contact me later. ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो. So we'll be discussing some very useful tools जो social media के हैं. सोशल मीडिया के अलावा टूल्स हैं अपना बिजनेस मार्केट करने के लिए. ठीक है, तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, परफेक्ट, ये आपके लिए बहुत काम आएगी वर्कशॉप. इवन इफ यू आर नॉट, तो आप ये स्किल्स सीख कर यू कैन हेल्प यू स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इन द फ्यूचर, और इट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर इंटर्नशिप. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जिनको इंटर्न्स चाहिए होते हैं कुछ कामों के लिए. तो अगर आपके पास ये नेसेसरी स्किल्स होंगी और आप इनको अपनी सीवी में मेंशन करते हैं तो वेल एंड गुड. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी. हमारा प्लेटफॉर्म है गूगल क्लाउड का. ठीक है, इस पर हम सीखेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से होस्ट कर सकते हैं. ठीक, so let me share my screen. Give me a minute. All right. So Google Cloud is Google का platform where they provide cloud की services. मैं दिखाती हूँ कि इसमें और क्या क्या है. So I'll just type Google Cloud, and this takes me to this first link. ठीक है, cloud.google.com. And click on Go to Console. अच्छा. Now, since I already have an account here, so I think it's going to redirect me to my account. But अगर आपके पास account नहीं होता तो आप इस पर account create कर सकते हैं. अच्छा, एक थोड़ा disclaimer से मैं दे दूँ. Creating an account will ask you for your ID card number. ठीक है, and your ID card, sorry, your ATM card number and your
कार्ड एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो इसका पर्पज ये है कि वो आपका $1 काटेगा भी, ठीक है, कार्ड में से, और आपको $1 सिर्फ कटेगा, उसके बाद कुछ नहीं करता। दिस सर्विस इज ऑल फ्री। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि इनकी और क्या क्या सर्विसेज आप बिल्कुल फ्री में अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, $1 इसलिए करते हैं तो वेरीफाई कि आपकी ट्रांजैक्शन वैलिड है नहीं है, ठीक है, इसलिए करते हैं आपको $1। तो इट्स जस्ट $1 विच इज हार्डली लाइक 170 160 रुपीज समथिंग, ठीक है, इट्स नॉट मच। और फिर आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अगर प्लेटफॉर्म को जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट की भी कंडीशन होंगी, ऑब्वियसली कांट हैव इट फॉरएवर। तो यू गेट 300 क्रेडिट्स। अगर यहाँ पर कहीं बिलिंग का सेक्शन है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो दिस इज द अकाउंट आई वांट टू यूज, गिव मी अ सेकंड। यस, अच्छा, तो मैं अपना दूसरा अकाउंट खोल रही थी जिसपे मैंने जो है वो प्लेटफॉर्म यूज किया हुआ है, ठीक है। Sure, I have to select a project and I'll select Learnovate. Refresh this. So, अगर बिलिंग पे बाद में जाते हैं तो बिलिंग क्यों नहीं दिखा रहा, एनीवे। सो दिस इज गूगल क्लाउड का होम पेज, ठीक है। जब आप अपना साइन इन करते हैं तो यू हैव दिस होम पर डैशबोर्ड, नॉट सॉरी डैशबोर्ड, ठीक है। और ये इनकी सारी सर्विसेज है। तो व्हाट यू कैन यूज गूगल क्लाउड फॉर इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप जब अपनी इफ यू हैव आइडिया अबाउट वर्चुअल मशीन, आप अपनी वर्चुअल मशीन होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल मशीन मुझे नहीं पता, इट्स लाइक having a computer within a computer on cloud, ठीक है। एक इसमें अपनी एक मशीन क्रिएट कर सकते हैं एक अलग से, उसमें उसका अपना ओएस होगा, उसकी अपनी मेमोरी होगी और वो अलग से बिल्कुल चल रही होगी एंड वो क्लाउड पर होगी। क्लाउड पर होगी मीन्स एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये है, और इसमें बहुत सारी इनकी सर्विसेज, अगर आप इसको कभी टाइम मिले तो इसको एक्सप्लोर करेगा। ये काफ़ी जो है वो जितनी जो भी क्लाउड की बात करते हैं ना जो कंपनीज है वो कि हमें क्लाउड पे चाहिए, हमारे क्लाउड पे बना हुआ, तो दिस इज ऑल क्लाउड, ठीक है। दीज आर क्लाउड की सारी सर्विसेज। तो लेट मी सी इफ बिलिंग इज वर्किंग। No, I don't have access to billing. Fahad, I'm really sorry, but I just received a message from the facilitator. शायद इन लोग को आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। Oh, I'm sorry. I'm sorry. Is it clear now? Mom, is it better? I can hear you, but I think auditorium में आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं जा रही है। I'll Let just me ask them to play. reconnect. All right, sure.
Okay, so Dalit, I think we can begin now. all right. Thank you, Mom. Can you hear me now? I also changed my earphones just in case there was problem on my end. Umam, can you hear me? Just let me know. जी तलत, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है. आप स्टूडेंट्स से अगर पूछ रहे हैं Okay. You, but we want you to little bit clear and louder because हमारे यहाँ strength मेरा ख्याल है 80 students हैं और ये जो process आप समझा रही हैं ये students की समझ नहीं आ रहा. थोड़ी सी clarity चाहिए थी. अच्छा, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. आपकी आवाज़ आप मुझे बताएं क्लियर आ रही है? प्रोसेस में शुरू से समझा देती हूँ, नो इश्यूज. आवाज़ if you clear. थोड़ा सा माइक अगर आप दूर कर लें and then if you speak so I think that'll be perfect. ऑल राइट, बेटर नाउ? हाँ बिल्कुल. थैंक यू सो मच. ऑल राइट, अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. ठीक है, देखो हम लोग जो है वो अपनी जो वर्डप्रेस की हम वेबसाइट्स बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो वर्डप्रेस वेबसाइट जो हम बनाते हैं दैट्स कॉस्टली, राइट? फॉर एग्जांपल, चलो वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो वर्डप्रेस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर वेबसाइट क्रिएशन, राइट? वर्डप्रेस पर आपकी वेबसाइट्स बनती है. But if you want to create a WordPress website, if you want it hosted online, they are going to cost you. You can't have it for free. ठीक है, तो अगर मैं जाऊं भी इनके प्राइसिंग प्लान्स पर, फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है, तो they are gonna ask me for the details and then they are gonna take me to a payment page. I can no longer have free websites on WordPress. Let's call it ABC. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ. Yeah, so this took me directly to um this payment plan. ठीक है, so I can have .wordpress.com for free, but I don't want this. I want my domain. I want my website's name entirely. I don't want this 5184 to do this. I don't want this. ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि अपनी वेबसाइट खुद से बनाऊँ without paying them, right? So इसके लिए गूगल क्लाउड जो है वो आपको एक सोल्यूशन देता है. ठीक है, गूगल क्लाउड क्या है? गूगल क्लाउड इज अ सेट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, राइट? ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल होने से मतलब है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपके आप लोगों ने गूगल डॉक्स, गूगल के पॉइंट, गूगल स्लाइड्स वगैरह यूज किया होगा, ठीक है, सो दैट्स ऑल ऑनलाइन. तो इसी तरह जो हमारी बाकी सर्विसेज हैं, वो वेबसाइट की और मशीन्स की सारी सर्विसेज, अगर मैं आपको इसकी सर्विसेज दिखाऊं तो दे हैव अ लॉट. ठीक है, तो वो जो है वो ये ऑनलाइन देता है आपको क्लाउड के ऊपर. मैं अपनी क्लाउड के ऊपर एक मशीन बना सकती हूँ, इंटरनेट के ऊपर मैं अपना एक अलग कंप्यूटर बना सकती हूँ. ठीक है, इन सिंपलर टर्म्स. खैर इतना डिटेल में मैं नहीं अभी बता रही आप लोगों को, आप लोग खुद, मैं चाहूंगी कि इसको एक्सप्लोर करें जिन लोगों को इंटरेस्ट है. तो यू गो टू गूगल क्लाउड. ठीक है, सिंपली आपने गूगल करना है गूगल क्लाउड, और दिस इज द फर्स्ट लिंक. ठीक है, और ये जो है वो आपको कहेगा कि आप गो टू कंसोल करना चाहिए. इसको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर. अगर इसका भी आप एक्सप्लोर करें तो आपको समझ आएगा कि इनकी सर्विसेज क्या हैं. अ लॉट ऑफ कंपनीज जिन्होंने दिए हुए क्लाइंट्स आर यूजिंग दिस सर्विस एंड इट्स वेरी इन डिमांड. सो इफ यू लर्न हाउ टू यूज गूगल क्लाउड एंड सर्विसेज बाय गूगल क्लाउड, तो आपके जो है वो अपनी इसको सीवी पे अगर आप डालें तो आपके ऑब्वियसली इंटर्नशिप के इसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. स्पेशली स्टार्टअप्स होते हैं, उनको बहुत ज़रूरत होती है इस इंसान की. ठीक है, तो ये था, इसमें आप अपने एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, सब कुछ, सारा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं.
It's a one-stop solution to everything. ठीक है, simply put. तो I'll just click on go to console. ठीक है, but जब आप अगर first time sign up कर रहे हैं तो the website is gonna ask you for your credit card number and your credit card expiry date. ठीक है, it's not gonna charge you more than $1. It's only gonna charge you $1 सिर्फ. ठीक है, और $1 जो charge करेंगे ना ये that's hardly like 170 rupees, 160 170. ठीक है, और जो $1 charge होगा, this gives you free access to all of their services for a year. ठीक है, तो अच्छा मैं बिलिंग पे दिखा रही थी आप लोगों को यहाँ पर. तो ये मेरा अकाउंट है, बना हुआ है गूगल क्लाउड का. ठीक है, आई हैव अ स्टार्टअप कॉल्ड लर्नोवेट पाकिस्तान और ये उसका अकाउंट है. तो इस मैंने अपनी लर्नोवेट की वेबसाइट भी इसी पर बनाई भी है. ठीक है, तो अच्छा this here I want to highlight this portion. Let me annotate this. ठीक है, so if you can see I am on a free trial. ठीक है, I haven't paid them anything other than $1, more than $1. I haven't paid them anything and I was given 300 USDs. ठीक है, मुझे 300 USDs इन्होंने दिए थे. जब मैं साइन अप करती हूँ अपना क्रेडिट कार्ड डालती हूँ $300 मुझे मिल जाता है. ठीक है, और $300 को ओवर द ईयर मैं यूज कर सकती हूँ. ठीक है, कभी भी किसी भी सर्विस के लिए. राइट, क्रेडिट डिटेल्स पे क्लिक करूँ अगर मैं. So yeah, so end date in the 11 June, so it started on 11 June 2020, 11 June 2021. So this expires in a year. ठीक है, और एक ईयर तक $300 आप आराम से यूज करता है, and that's a lot. Trust me, मेरी पूरी वेबसाइट हमारी चल रही है I think जून. ठीक है, और उसमें से अभी तक जो है वो सिर्फ $100 वो हुए हैं यूज और $200 अभी भी रहते हैं. तो all those looking forward to creating your own websites for free, तो आप लोग इसको जरूर कंसिडर करो. ठीक है, दिस ऑप्शन को. अच्छा, now let me start with कि हम वर्डप्रेस पे can I get any idea कि वर्डप्रेस कितने लोगों ने यूज किया हुआ है? is there a way कि आप लोग मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिले आप लोगों से? अच्छा, even if आप लोगों ने यूज नहीं भी किया हुआ तो वर्डप्रेस इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर क्रिएटिंग ऑफ वेबसाइट्स. मैं आपको दिखा देती हूँ कि वर्डप्रेस की जो आपको इसमें अच्छा वर्डप्रेस की भी कुछ जो पेड है ना उसमें अलग चीजें हैं और जो फ्री वर्जन है उसमें अलग है. जो अभी आपने .wordpress.com देखा था उसमें सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते. ठीक है, बट इफ यू आर क्रिएटिंग योर वेबसाइट थ्रू गूगल क्लाउड तो उसमें आपको अच्छे खासे लिंक्स मिल जाएंगे, अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्डप्रेस लिखूंगी खाली. ठीक है, इनकी सर्विसेज सारी आ जाएंगी यहाँ पर. तो मैं सर्च करूंगी पहले वर्डप्रेस लिखकर and I have a lot of options here but I want a specific WordPress. Let me find the option for actually इनका इंटरफेस थोड़ा चेंज हुआ इसलिए I'm a bit confused. ठीक है, तो I think this is the one we are going to use. Let me see, मैं आपको पूरा नाम बता दूं कि हम कौन सा यूज करने वाले हैं. There are a lot of resources for WordPress भी different चीजों के, but क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल वेबसाइट क्रिएट करनी है इसलिए मैं कुछ इस तरह का रिसोर्स नहीं देख रही हूँ. ठीक है,
तो Mhm. Sure. So I need to create my own WordPress instance. Give me a minute to explore this. फिर मैं आपको बताती हूँ. Yeah, this one. ठीक है. अच्छा, इसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया इंटरफेस. आई couldn't quite recognize. It's Google Click to Deploy. ठीक है. क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारे लोग contribute करते हैं, तो you can have different producers, but the reliable I think is WordPress. Google का ये Click to Deploy वाली चीज. ठीक है. So आप लोग इस पे WordPress लिखोगे, you will have all the options. ठीक है. But you have to pick the one that says Google Click to Deploy. ठीक है. अब मैं इस पर क्लिक करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से काम करेंगे. ठीक है. अच्छा, दिस इज जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट इससे बनेगी. ठीक है. One thing to highlight is you can see that it says estimated cost is $13.61. So we have 300 credits for a year. 13.6 is nothing. ठीक है. 13.6 आपको एक साल में आराम से हो जाएगा. तो या और कुछ आई थिंक दिखाने का नहीं है. तो I'll just click on launch. ठीक है. अच्छा, फिर आप अपनी डिप्लॉयमेंट का नाम जो है अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल ABC बुटीक और व्हाटएवर. दिस इज ऑप्शनल. दिस ये किसी को नजर नहीं आएगा. उप्स, सी बुटीक. ठीक है. अच्छा, फिर इसमें यू नीड टू हैव योर ईमेल एड्रेस. ठीक है. आपका जो ईमेल एड्रेस है, आई जस्ट माय ईमेल एड्रेस. ठीक है. एक मेन ईमेल एड्रेस होगा जिस पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी और डिटेल्स यूज हो सकती हैं. ठीक है. अच्छा, इसको मैं आई डोंट थिंक इसको हमें छेड़ने की जरूरत है मशीन टाइप को. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. ठीक है. व्हाई? बिकॉज दिस इज सफिशिएंट. 1.7 GB मेमोरी इज सफिशिएंट. ये अनलेस आपका कोई बहुत हैवी वो है जिस पे बहुत ज्यादा यूजर्स आएंगे और बहुत ज्यादा आपने जो है वो काफी एक्सटेंसिव बनानी है विद अ लॉट ऑफ पेजेस एंड a lot of products, a lot of pages, a lot of pictures. So maybe आपको ये थोड़ा कम पड़े and then you'll have to do some research. But I'd suggest कि you stick with this और इसे छेड़खानी ना करें आप. ठीक है. Again, इन सब चीजों को settings को सबको default रहता है. ठीक है. Okay, deploy. So this is gonna take a minute. While this is taking time, I'll just reiterate कि हमने क्या किया है. हम जो है वो हम अपनी गूगल वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है हम वो बनाना चाह रहे हैं. ठीक है. और हम वी वांट इट फ्री ऑफ कॉस्ट. वी डोंट वांट टू पे. हम अपना स्टार्टअप हमने किया है और वी वांट कि हम उसकी एक वेबसाइट बनाएं. ठीक है. एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. वी आर यूजिंग गूगल क्लाउड की सर्विसेज टू क्रिएट अ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट, अ फुली full WordPress website with all its features. ठीक है. जो wordpress.com वाली मिलती है that has limited features, so we are using this.
ठीक है, सो इट्स गेटिंग डिप्लॉयड। और फिर मैंने जो है वो, अच्छा इट्स डिप्लॉयड, फिर मैंने सिर्फ सर्च किया था यहाँ पर ऊपर इस सर्च बार में कि गूगल सॉरी वर्डप्रेस एंड इट शुड बी वर्डप्रेस गूगल क्लिक टू डिप्लॉय, उस पर मैंने क्लिक किया था। ठीक है, अच्छा तो ये जो है वो क्रिएट हो गई है एंड आई जस्ट शो यू कि हाउ अ वेबसाइट लुक्स। दिस इज अ यूआरएल, अगर आप चाहो तो ये आप अपने पीसीस में ड्रैग कर सकते हो, आपको यही चीज नजर आएगी। ठीक है, मैं इस यूआरएल पे भी आती हूँ कि ये किस तरह का है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल सी, दिस इज गोइंग टू बी योर वेबसाइट। ठीक है, आप इसको पूरी एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। लेट मी शो यू द कस्टमाइजिंग ऑप्शंस। उसके लिए वी गो टू दिस। ठीक है, लेट मी मैक्सिमाइज दिस, या सॉरी, सो दिस थिंग हियर। ठीक है, /wp admin आपका यूआरएल, this is your URL 35.125 plus 0.73.249 and /wp-admin। जिन लोगों की अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट से उनको आइडिया होगा, यूजुअली भी हमारा यही होता है। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट का है learnovate.pk/wp-admin, तो इससे मेरा एडमिन का पैनल खुल जाता है। ठीक है, सो वेयर इज द एडमिन पैनल। अच्छा, यहाँ से मेरा एडमिन पैनल खुल जाएगा और इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मुझे यहीं पर मिलेंगे नीचे जाकर। ठीक है, वर्डप्रेस एडमिन यूजर और उप्स, ठीक है, इसका मैं कंट्रोल-C कर लेती हूँ एंड वर्डप्रेस कहाँ गया, वर्डप्रेस एडमिन पासवर्ड, इसको मैं इसी तरह कॉपी कर रही हूँ। एंड देयर यू हैव योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ठीक है, इधर से आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। दिस में सीम अ बिट इंटिमिडेटिंग बट दिस इज वेरी इजी। इनकी थीम्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है, जिनको आप कर सकते हैं कस्टमाइज। मुझे इन थीम्स में से नहीं चाहिए, I'll add my theme I want, I have for example a boutique, right? So I can start with a boutique theme if they have. अपना time waste, sorry. Yeah, so they have these ready-made themes. मैं इसमें से कोई भी यूज करके अपना प्लेटफॉर्म बना सकती हूँ। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आई हैव द लास्ट टाइम आई हैड दिस सेशन, दिस सेट के हम लोग का जो है वो कुकिंग का यूट्यूब का वो है, उनके उसके लिए वो वेबसाइट अगर बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन सिंपली से कि यूट्यूब पे कुकिंग चैनल है, उसकी वेबसाइट चाहिए थी, तो सर्च ऑन कुकिंग, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस पर करना है, यानी आ जाएगा, मैं एक करके दिखाती हूँ। एंड सम पीपल हैव फोटोग्राफी ब्लॉग्स, दे हैव excellent options for photography. Yeah. You can choose any of these for free of cost, no costs. ठीक है, this is अच्छा, और कुछ लोगों का होता है फ्रीलांसिंग में। ठीक है, since I don't know आप लोगों के बैकग्राउंड्स, इंडिविजुअल बैकग्राउंड्स क्या हैं, तो I'm just using the random stuff here that most people usually have college के उस पे एज में, so but you can use it for anything. ठीक है, कुछ भी है, आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई भी थीम मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ई फ्रीलांस का आपका बिजनेस है, ठीक है, फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, so these are the themes for that. Plus you have an e-commerce store too, so I sell stuff. ठीक है, I sell my homemade brownies, homemade clothes, homemade purses, anything. I can have an e-commerce store for that. ठीक है, so this is my e-commerce. I'll just randomly pick a theme right now. ठीक है, इसका मैंने चूज किया, आप देख भी सकते हो इसमें क्या होगा, आपको क्या पेजेस मिलेंगे, ये पूरी जो है वो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। This is just random text and I'll install it.
and I'll activate it. ठीक है, न्यू थीम एक्टिवेटेड. अब मैं इसको अगर देखूं, रिफ्रेश करूं, जो हमारा URL है पब्लिक URL, तो आप विल सी कि ये भी अपडेट हो गया है. ठीक है, अब आप इसको और कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके. दिस इज द कस्टमाइज ऑप्शन. And then you can change all the features you want. ठीक है, इसका मेन्यू, इसकी बैकग्राउंड इमेज सेटिंग्स. दिस इज कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस, कलर्स, हेडर, फुटर, एवरीथिंग. जिसके आगे आपको यहाँ पेंसिल नजर आ रही है, एवरीथिंग यू कैन एडिट हियर. ठीक है, दिस. अच्छा, देन देयर आर widgets. एक सेकंड, सॉरी. देयर आर widgets. ठीक है, widgets एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है. widgets क्या होता है? widgets are kind of boxes कह लो. this is a widget. ठीक है, this your header is a widget. ये पूरा header नजर आ रहा है आपको. let me annotate this. ठीक है, this whole entire thing is a widget. ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपके पास नीचे आते हो और कोई ये this is a widget, hello world जहाँ लिखा है. ठीक है, widgets are small boxes जो आपके कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं. इवन ऑन योर फोन्स यू हैव widgets. ठीक है, widgets होते हैं जो आपको स्पेशलाइज्ड चीज देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर क्लॉक का widget है, वो क्लॉक बनी हुई आ जाएगी. इस तरह की चीज होती है. मैं दिखाती हूँ एग्जांपल तो आइडिया हो जाएगा. लेट मी क्लियर दिस. या, सो दीज आर द widgets. ब्लॉक की साइड बार, WooCommerce साइड बार, फुटर एक है. इसमें आप जो है वो और भी widgets डाल सकते हो. यू कैन हैव कैटेगरीज का widget, एक widget हो जहाँ पर कैटेगरीज लिखे हुए हो. यू कैन हैव कैलेंडर का widget. ठीक है, यू कैन हैव डिफरेंट नेविगेशन मेन्यू का widget. सो यू कैन हैव अ वीडियो widget. ठीक है, तो आपको वो कहाँ चाहिए? आपको ब्लॉग के साइड बार में चाहिए, आपको WooCommerce के साइड बार में चाहिए, एनीथिंग वांट. ठीक है, सो ऑल द अवेलेबल widgets. एंड अच्छा, इसकी बहुत सारी प्लगइन्स होती हैं. दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप, बट मैं बता दूं. वर्डप्रेस पे यू हैव अ लॉट ऑफ प्लगइन्स. ठीक है, वर्डप्रेस का बहुत स्कोप है. पहले तो इस पे यू कैन क्रिएट कस्टमाइजेबल वेबसाइट्स. और अगर आप अपने इस पे लिखें कि आपने वर्डप्रेस की वेब डेवलपमेंट आती है, तो a lot of people are looking for people who can design WordPress websites for them. ठीक है, तो इसका आपको आराम से प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं. एंड यू कैन, अगर आप इसको सीख लें, इट्स वेरी इजी. ठीक है, सीखना बहुत आसान है. तो आप अगर इसको सीख लें तो आपको घर बैठे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. इसकी बहुत डिमांड है. तो एक बहुत यूजफुल प्लगइन होती है, मैं बता दूं पीपल हु आर इंटरेस्टेड, कॉल्ड एलिमेंटोर. ठीक है, ऐड न्यू, विच इज टोटली ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है, उसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी हर चीज सिलेक्ट कर सकते हैं. एलिमेंटोर, यस. ठीक है, तो दिस इज एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर. या, एक्टिवेट. ठीक है, फर्स्ट पेज. सही, तो ये मेरा होम पेज है. ठीक है, एंड इसमें जो है वो मैं कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई वांट, अच्छा कुछ फीचर्स इसके सिर्फ प्रो में अवेलेबल होते हैं, बट उसके लिए यू कैन हैव अदर प्लगइन्स. बहुत सारी प्लगइन्स हैं जो आपको इसके फीचर्स फ्री में भी देती हैं. आई वांट एन इमेज carousel. ठीक है, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ डाल दिया. ये मेरी इमेज carousel आ गई. इसमें मैं अपनी इमेजेस चूज करके पूरा एक carousel बन जाएगा. लेट मी चूज समथिंग एल्स. ठीक है, then you can have buttons, you can have Google Maps, you can have video, image, anything that's available here. ठीक है, इमेज carousel मैंने दिखा दिया. काउंटर लगा सकते हैं आप कि हमारी सेल स्टार्ट हो रही है इतने दिनों में. then you have सारे इसमें जितने अवेलेबल वीडियोज हैं जिनके आगे सिर्फ ये लॉक बना हुआ है, if you can see that, so those are the only ones that are not available on the free plan. ठीक है, this log indicates they are not available on free plan, but rest are.
अच्छा, एक और जब इंटरेस्टिंग चीज है, इफ यू गो हियर, ठीक है, सॉरी, इफ यू गो ऑन दिस वन, दिस प्लस एड न्यू सेक्शन, तो ये आपको आई थिंक ऑप्शंस भी देता है. हाँ, सॉरी, टेम्पलेट्स. इफ यू क्लिक ऑन टेम्पलेट्स, ठीक है, तो ये आपको रेडीमेड दिस फोल्डर है, दिस ग्रे बटन, इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो ये आपको रेडीमेड वो भी देता है, पेजेस वगैरह जो कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट द वंस ऑन प्रो, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज. जो एलिमेंटर प्रो पे नहीं है, यू कैन यूज दीज, यू कैन यूज दिस होम पेज, ये एज इट इज आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है. एंड एंड यू ऑल्सो हैव ब्लॉक्स. ब्लॉक्स क्या होता है? जैसे एक छोटा सा पार्ट ऑफ अ वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल दिस, आप ये डाल सकते हो ब्लॉक अपनी वेबसाइट के बीच में, और आप ये डाल सकते हो एक बटन और थोड़ा सा टेक्स्ट, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज वेरी कन्वीनियंट. मुझे ये चाहिए तो मैं ये पेज डाल देती हूँ. oops, what's with this one? अच्छा, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा. ओके, आई एम नॉट लॉगिंग इन राइट नाउ, बट मैं आपको बताती हूँ कि यू कैन डू दिस, ठीक है, इस तरह से. तो ये आपका पेज आ जाएगा, एंड दिस इज अवेलेबल टू पब्लिक विद दिस यूआरएल, ठीक है. नाउ ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी वेबसाइट इज अवेलेबल टू पब्लिक. यू कैन चेंज दिस पिक्चर वगैरह कुछ भी, चेंज एवरीथिंग. Okay, so yeah, so now this URL, but it makes awkward, like अगर आप अपने कस्टमर को बताओगे तो this URL is किस तरह से इंसान फॉलो करेगा? 34.125.73.249. You can't give this, ठीक है. You need a proper website, www.abc.com. तो उसके लिए .com is expensive, ठीक है. जो domains होते हैं वो paid होते हैं. Domains paid इस तरह होता है कि you have to pay I think has 1,000 rupees per year for a domain, around this होगा, ठीक है. You can search, you can look it up, but you also have free of cost domains. तो इसको मैं सर्च करती हूँ. If you are doing it for your personal business, तो obviously आप, I don't think इतना worth है कि आप business start करते हो और इतनी investment करते हो, ठीक है. आप pilot run करते हो, पहले आप pilot test करते हो, तो this is ideal for pilot test, ठीक है. बाकी अगर आप जो है वो उस पे कर रहे हो, किसी बिजनेस के लिए कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट कर रहे हो, या किसी इंटर्नशिप पे कर रहे हो, तो यू डोंट नीड टू डू दिस, ठीक है. वो आपको खुद देंगे अपना डोमेन. अच्छा, फ्रीडम इज अ वेबसाइट जिस पे आपको फ्री डोमेन्स मिल जाएंगे, ठीक है. सो बट जो डोमेन्स आपको मिलते हैं, दोज आर लाइक दिस .ga.ml. तो आपका जो भी बिजनेस का नाम है उसके आगे जो है वो .tk.ml .ga.cf.gq आ जाएगा. .com .pk इस तरह की चीजें नहीं आएंगी, that you have to buy. अच्छा, let me see इनके services या register new domain अगर मैं करूँ, ठीक है, तो I can say ABC check availability. अच्छा, तो अच्छा, ये सारे पेड में, इनके पास अनपेड में अवेलेबल नहीं है. Let me see for my business. ओके, तो ये नॉट अवेलेबल हैं जितने जो इनके पास फ्री वाले थे. बाकी आप देख सकते हो इसमें .com की प्राइस कितनी है, $8 है. एंड आई थिंक दिस इज पर ईयर, $8 पर ईयर होगा इनका, ठीक है. तो इट इज अराउंड 1,000 और समथिंग, ठीक है. अच्छा, या ओके, तो अच्छा, लर्नोवेट के लिए if I want, तो .tk is available for free. I can have learnovate.tk for free, ठीक है. मैं get now पे क्लिक करूंगी and then I can have my domain. तो ये थोड़ा सा डोमेन सर्विस का काम होता है, बट वो आपको गूगल करना पड़ेगा. बट द पॉइंट इज कि यू कैन हैव इट फॉर फ्री, और आप जो learnovate.tk पे जो भी जाएगा उसको आपकी ये वाली वेबसाइट जो है वो नजर आ जाएगी, ठीक है. अच्छा, ये एक स्टेप है, बट इफ यू डोंट वांट इस तरह का कुछ,
there's another easier solution which is URL shortener. इसका शायद आप लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को। तो इससे आपका URL छोटा हो जाता है, ठीक है, URL कस्टमाइज हो जाता है। लेट्स गो टू टाइनी URL कहीं है अगर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट जो मैं मोस्टली यूज करती हूँ दिस इज टाइनी URL, ठीक है। तो आप बहुत सारे कोई भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, तो आई नीड टू चेंज माई URL, आई नीड टू चेंज दिस थिंग एंड आई वांट कि लोग मेरी वेबसाइट पर जाएं तो उनको ये खुले एंड वो वेबसाइट का आईडी जो है, एड्रेस जो है वो ये नहीं होना चाहिए नंबर्स में, इट कुड बी समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल माय बिजनेस इज कॉल्ड नो वेट ही कर देते हैं बिकॉज आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स राइट नाउ। अच्छा, तो दिस लर्नर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, लर्नर वेट पीके करके देखते हैं। या Learnovate PK is available, ठीक है। तो अब this has changed to this। अब अगर मैं किसी को ये एड्रेस दूं अपनी वेबसाइट का, this looks better, right? मैं किसी को ये कह सकती हूँ कि if you want to see my website you can see this। तो जो कोई इस पे जाएगा, even if you can try it with your systems right now, tinyurl.com पे जाएगा, /Learnovate PK लिखेगा, वो इसी पर लैंड करेगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके दिखाती हूँ, कॉपी एंड पेस्ट हियर एंड देयर यू हैव इट, आपकी वेबसाइट पर आ गया डायरेक्ट, ठीक है, जो आपने खुद बनाई भी होगी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम गूगल क्लाउड, ठीक है। गूगल क्लाउड पे हमने कहा कि VM इंस्टेंस कैसे बनेगा, सॉरी गूगल वो बनेगा VM इंस्टेंस, वर्डप्रेस का कैसे बनेगा, एक वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनेगी, वर्डप्रेस वेबसाइट कस्टमाइज कैसे होगी, और फिर वर्डप्रेस वेबसाइट का हम जो है वो डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन कैसे लेंगे, और फिर इसका अगर URL बेहतर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। सो फार वी हैव डन दैट। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज लेट मी नो। No, ma'am, no question. ऑलराइट, सही है, परफेक्ट, नो क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको बाद में भी करते हुए कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, करते हुए कोई क्वेश्चन आते हैं, फील फ्री टू ईमेल मी, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस ही बता देती हूँ, ठीक। अच्छा, okay, so moving on to our next service, let me close all these tabs, ठीक है। So our next service is Mailchimp. Mailchimp क्या होता है? Mailchimp है, it's mailchimp.com, mailchimp.com। ये this is used for email marketing, ठीक है। प्राइमरीली इसका यही है कि ईमेल मार्केटिंग के लिए होता है। आप जो है वो अपने कस्टमर्स को वीकली, मंथली या फिर उनकी बर्थडेज पर ऑटोमेटेड ईमेल्स भेज सकते हैं। ऑटोमेटेड मींस कि आपको कुछ नहीं करना, ईमेल खुद ही जाएगी, आपने सिर्फ सेट कर देना है कि मेरे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, बल्कि कॉन्टैक्ट्स भी इसमें ऑटोमेटिकली भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत दफा आपने किसी वेबसाइट पे साइन अप किया, अगर उनके न्यूज़लेटर्स आते रहते हैं आपको ईमेल में, ठीक है, एंड तो दे टेल यू अबाउट योर सर्विसेज, उनकी कभी ये होता है कि किसी बुटीक में सेल लगी है तो वो अपनी सेल जो है वो उसका ईमेल आपको आती है। तो दिस इज व्हाट मेलचम्प इज प्राइमरली यूज फॉर। इसका मेन जो पर्पस है वो यही है। इसके अलावा इसकी और भी बहुत चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे अभी इन अ मिनट, ठीक है। अच्छा, मेलचम्प हेल्प, अच्छा दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका भी मैं प्राइसिंग प्लान दिखा देती हूँ। अभी जितने भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, दे रिक्वायर नो कॉस्ट एट ऑल, एक्सेप्ट जो आपने क्रेडिट कार्ड से साइन अप करना था वो भी सिर्फ आई थिंक गूगल क्लाउड में था, इसके अलावा कोई सर्विस इतना नहीं मांगती है, कुछ भी नहीं मांगते। अच्छा, इसमें कुछ काम का मैं देख रही हूँ डिस्कस करने वाला, ठीक है। So these are the features they are providing। मैं एक एक फीचर आपको डिटेल में अभी बताती हूँ। दिस इज वंस अगेन, अगर आप कोई मार्केटिंग की इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वहाँ आप लिखते हैं कि आपने मेलचिम्प भी यूज किया हुआ है, तो दिस इज अ वेरी यूजफुल स्किल बिकॉज मार्केटिंग कंपनीज को ईमेल मार्केटर्स चाहिए होता है जो ईमेल अच्छी सी ईमेल कॉपीज लिख सकें और ईमेल अच्छे से सेंड कर सकें। सो आई एम गोना लॉग इन। अच्छा, पर प्राइसिंग बता दूं कि आपको फ्री में क्या क्या मिल रहा है।
So for free, you have you have this package जिसमें आपके 2000 contacts आ सकते हैं, ठीक है? 2000 contacts is a lot for a startup, right? Startups I don't think 2000 ज़्यादा contact होते हैं. So this is great for this. Plus you have a lot of different features. CRM होता है. CRM क्या होता है? Customer Relationship Management. Customer Relationship Management is where आप अपने customers का पूरी details इसमें input करते हैं, customers का email address, name वगैरह, and you उनकी डिटेल्स होती है, एंड देन यू सी के कौन से कस्टमर आया है, ठीक है, उसको कब ईमेल करनी है, कब नहीं करनी, कौन सी ईमेल करनी है, इसमें बेसिकली अपना कस्टमर मैनेज करते हैं, अपने कस्टमर्स को उनसे कनेक्ट करते हैं इन सिंपलर वर्ड्स, ठीक है? तो दैट्स दिस इज मार्केटिंग कस्टमर मैनेजमेंट. कस्टमर्स को मार्केट कैसे करना है ये आपको वो बताएगा. क्रिएटिव असिस्टेंट एक्सप्लोर करते हैं, वेबसाइट बिल्डर में एक्सप्लोर करवाती हूँ, मेलचिम्प का डोमेन होता है, ठीक है, फॉर्म्स एंड लैंडिंग पेजेस भी करते हैं, हम सब एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? देन यू हैव एसेंशियल स्टैंडर्ड वगैरह, इस पर मूव ऑन कर सकते हो, व्हिच इज पेड, but we will only stick with the free one. तो मैं यहाँ लॉग इन कर रही हूँ, since I already have an account, you guys can sign up, it's totally free, ठीक है? तो let me just log in here. Okay, sorry. So there's something wrong with this. I don't know why I can't log in. Okay, I've forgotten my password. Let me create a new account because I can't remember my password here. I'm sorry. Okay, thank God. ठीक है. जब मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, यू हैव सीन कि अकाउंट कितना इजीली बन जाता है, ठीक है? यू ओनली नीड टू एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड अ यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कोई यूनिक यूजर नेम होना चाहिए जो बाकियों का ना हो. अच्छा, then they'll send you an email for confirmation. So I'll just check my inbox and get back to this, ठीक है? I'm pausing the screen.
अच्छा, तो मैंने ईमेल से कंफर्म किया था, and it took me to this. ठीक है ना, they are asking me my plan, they are telling me about my plans, and I'll stick to the free one. ठीक है, तो complete, you can see ये $0 है, absolutely no cost. I'll just complete, and then you have to set up your business account. So let me just go with the okay, there are too many options here. अच्छा, अगर यहाँ पे आपके पास contacts and if I click on yes, this is going to ask me to import, right? तो this is gonna ask me कितने contacts हैं आपके, तो obviously 500 to 1000 होंगे या 500 or less होंगे because this is a part of the free plan. तो I'll just stick with the continue. ठीक है, तो ये आपसे इसलिए पूछ रहा था ताकि आपको सजेशंस बेटर दे, ठीक है, आपको सजेशंस देगा कि आप अपना ईमेल किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, तो ये आपको सजेशंस के लिए आपसे पूछ रहे थे. इट्स बेटर कि आप इसको बताओ व्हाट आर यू सेलिंग, सिंस वी सेल सर्विसेज, तो सर्विसेज, ठीक है. अच्छा, क्या है, वेयर कैन पीपल एक्सेस योर ऑफरिंग्स, सो ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है. नो आई डोंट वांट टू, लेट्स जस्ट गो. So this is my admin panel, ठीक है, once आपका वो हो गया तो ये admin panel है. अच्छा, interesting thing is, sorry मुझसे click हो गया था. Interesting thing is कि आप इसमें जो है वो अपना integrate कर सकते हो अपनी वेबसाइट से, ठीक है. अगर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो उससे. ये सारे ऑप्शंस यहाँ नहीं दिखा रहा, बट व्यू ऑल इंटीग्रेशंस करेंगे तो आपको ये वर्डप्रेस भी दिखाएगा, बट मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज आई डोंट फाइंड इट वेरी यूजफुल कि आप जो है वो इंटीग्रेट करो. यू कैन जस्ट हैव योर कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली अपलोडेड हियर, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे होता है. अच्छा, सो दिस इज द साइड बार मेन्यू. यहाँ पे आपको ऑडियंस का ऑप्शन है, ठीक है. ऑडियंस में मेरे पास वन कॉन्टैक्ट है विच इज मी, ठीक है. माई ईमेल एड्रेस एज कॉन्टैक्ट सेव कर दिया, कॉन्टैक्ट्स डाल सकते हो. यहाँ पर मैं कहूंगी कनेक्ट साइट, ठीक है. कनेक्ट साइट अगर इधर करोगे तो आपके पास कॉन्टैक्ट सारे आ जाएंगे. अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट से कनेक्ट करते हो, वर्डप्रेस के कॉन्टैक्ट्स वर्डप्रेस पे अगर कोई साइन अप करता है आपकी वेबसाइट पे, वहां से आ जाएंगे. मैन्युअली ऐड करना चाहते हो, कुछ बिजनेसेस का ये होता है कि उनके पास एक स्प्रेडशीट बनी होती है अपने कस्टमर्स की, तो अगर आपके पास एक स्प्रेडशीट बनी हुई है अपने कस्टमर्स की, उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर बहुत इजीली. ऐड अ कॉन्टैक्ट करोगे और फिर यहाँ पर ऑप्शन होगा या ऐड कॉन्टैक्ट्स, ये तो मैन्युअली कर रहे हो आप एक एक बंदे को. कहीं ऑप्शन होता है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है. जब आपने इंपोर्ट किया है ना कॉन्टैक्ट को, तो वो आपकी पूरी कहेगा कि आप अपनी फाइल को अपलोड कर दो. उसमें आपकी जो है वो पूरी एक एक्सेल की फाइल होगी जिसमें कस्टमर का नाम, कस्टमर का सब कुछ होगा. कस्टमर का नाम, ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस इज अ मस्ट फॉर दिस मेलचिम्प क्योंकि वो डायरेक्ट ईमेल्स करता है, प्राइमरली फॉर ईमेल्स, राइट. और उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब हो सकता है. तो ठीक है, अभी मुझे कुछ इंपोर्ट नहीं करना, तो आई जस्ट एग्जिट दिस. ओके, देन यू हैव सेगमेंट्स. अच्छा, साइन अप फॉर्म से पहले बात करते हैं. साइन अप फॉर्म्स क्या होता है? साइन अप फॉर्म्स आर वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. साइन अप फॉर्म्स होते हैं जिन पे आप जो है एक पॉपअप फॉर्म अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हो या फिर एक ऐसी फॉर्म बनाकर डाल सकते हो. जैसे गूगल फॉर्म्स होते हैं. गूगल फॉर्म्स आई थिंक बहुत सारे लोगों ने यूज किए होंगे. आपको अपने एकेडमिक सर्वेस के लिए भी चाहिए होते हैं, कभी सर्वे कलेक्ट करना है, किसी चीज का एंट्री फॉर्म बनाना है, यूजुअली लोग गूगल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है. तो गूगल फॉर्म की एक अच्छी रिप्लेसमेंट ये होती है, गूगल फॉर्म आर नॉन कस्टमाइजेबल, राइट. यू कैन नॉट कस्टमाइज के मेरा पिक्चर आए मेरे बिजनेस की, या फिर लगे ही नहीं कि वो आपके बिजनेस का पार्ट है इस तरह से. तो उसके लिए यू हैव मेलचिम्प. मेलचिम्प पे आप कस्टमाइज फॉर्म्स भी बना सकते हैं, इनकी एक सर्विस ये भी है. तो
let's go with this embedded form नहीं, अगर embedded form होता है, embedded form का मतलब है कि वो सिर्फ वेबसाइट पर होगा. अगर वेबसाइट का बना रहे हो तो go for embedded. ठीक है. अगेन पॉपअप भी जो है वो वेबसाइट पर एम्बेड होता है क्योंकि जाहिर है कहीं से पॉपअप होकर आएगा. सो द इजीएस्ट आई थिंक इज फॉर्म बिल्डर. मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ. So there you have. अच्छा ये ऑप्शंस हैं इसके फॉर्म बिल्डर के. You have के फॉर्म में क्या हो, इज इट अ साइन अप फॉर्म, इज इट अ गुड बाय. अच्छा फॉर्म का एक्चुअली ये पर्पस है कि आप क्यों लोगों से फॉर्म फिल करवा रहे हो. ठीक है. साइन अप फॉर्म है सिंपल, तो मतलब आपकी सर्विस के लिए साइन अप कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स कि आप उनको वीकली कोई यूट्यूब का आपका जो कुकिंग चैनल है उसकी वीडियो भेजो उनको ईमेल पर, तो लोग उसके लिए सब्सक्राइब करें. ठीक है. तो दिस इज सिंपल सब्सक्राइब फॉर्म. सब्सक्राइब फॉर्म विद अलर्ट्स हो जाएगा कि आपको वो अलर्ट करें. फिर रिकैप्चा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, थैंक यू पेज भी हो उसमें, या फिर फाइनल वेलकम ईमेल भेज रहे हो. दीज आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, जो आप कर सकते हो. लैंडिंग पेजेस में अभी एक्सप्लोर करवाऊंगी. तो ये आपके साइन अप फॉर्म का यूआरएल है. अगर आप किसी को ये भेजोगे तो वो आपके फॉर्म पे आ जाएगा. अच्छा इसकी एक और यूजफुल वो है जो जो लोग काफी हम टीनेजर्स, काफी लड़कियां और काफी लड़कों को मैंने देखा है कि वो अपना एक बेकरी आइटम्स का जो है वो बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं. दे सेल कप केक्स, ब्राउनीज वगैरह, होममेड केक्स, विच इज वेरी वेरी गुड. ठीक है. तो उसके लिए आप उसके ऑर्डर्स लेने के लिए अपना एक फॉर्म बना सकते हो कि आपको किस तरह चाहिए, आपको केक पे कस्टमाइजेशन चाहिए नहीं चाहिए, किस तरह से चाहिए. यू कैन हैव अ फॉर्म फॉर दैट. ऑर्डर्स आप फॉर्म पे लो, क्योंकि मैसेंजर पे ऑर्डर देना इज नॉट सो प्रोफेशनल, राइट. जिनके बिजनेसेस है दे कैन रिलेट. फिर अगर किसी और चीज का बिजनेस है, इवन इफ यू सेल सम प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर आप सर्विस नहीं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो इट्स आइडियल कि आप जो है वो इसका ऑर्डर एक गूगल फॉर्म पे लो या फिर एक प्रॉपर फॉर्म पे लो कि कितना चाहिए, कहाँ चाहिए, एड्रेस डालें, सब डालें. ठीक है. काफी एक ऑर्गेनाइज अप्रोच होती है. तो द फॉर्म इज वेरी कस्टमाइजेबल, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था. यू कैन हैव as many options as you want. You can have image यहाँ भी डाल सकते हैं, वेबसाइट का वो डाल सकते हैं कि आप यूजर वेबसाइट एंटर करें, फोन नंबर, एड्रेस, जो जो चाहिए आपको वो हम यूजर से पूछ सकते हो. ड्रॉप डाउन चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स. ठीक है, मैं दिखा देती हूँ व्हाट आर दीज. तो रेडियो बटन्स होता है जिसमें इंसान को वन ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है खाली. इंसर्ट हो नहीं रहा क्या. ओके कहाँ इंसर्ट हुआ है, ये इधर इंसर्ट हो गया एंड में. ठीक है. रेडियो बटन होता है जिसमें इंसान को एक चूज करना होता है कोई भी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल, मीडियम, लार्ज. देन यू हैव चेक बॉक्सेस जिसमें पर्सन कैन यूज मल्टीपल ऑप्शंस. ठीक है, ये आ गया चेक बॉक्स नीचे. दे कैन हैव ये भी मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. देन यू हैव ड्रॉप डाउन मेन्यूज जिसमें से वो इंसान, आपका जो कस्टमर है वो कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर सकता है. वैसे ड्रॉप डाउन. ओके यहाँ आ गया. ठीक है, ये आप इसमें ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस डाल सकते हो. ऑल ऑफ दिस इज कस्टमाइजेबल. इसका डिजाइन पे आते हैं कि आप इसमें क्या अपने वेबसाइट की थीम के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं. यस डेफिनेटली. बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके. कलर चूज कर सकते हो. आई हैव अ ब्लू थीम. आई वांट एंटायर थिंग टू बी ब्लू. आई पिक ब्लू. बैकग्राउंड ब्लू हो गया. देन आई वांट द हेडर टू बी नॉर्मल हो. ठीक है, इसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, काफी छोटा लग रहा है. उप्स, छोटा हो गया. और एनीवे साइज बड़ा करते हैं इसका. ठीक है, बड़ा हो गया. फिर रैपर का बैकग्राउंड जो है वो मुझे दिस आई वांट लाइट ब्लू हो जाए. अच्छा देन यू हैव बॉडी. ठीक है, बॉडी का आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो. बॉडी का बैकग्राउंड दिस पार्ट, इसका बैकग्राउंड मुझे और लाइट चाहिए ताकि टेक्स्ट इज इजीली विजिबल. I'll just click on this. And this color is okay, I think.
ठीक है, इस तरह से आ गया। खैर टेक्स्ट आप कर सकते हो, टेक्स्ट का फॉन्ट क्या चाहिए, कौन सा चाहिए, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लिंक स्टाइल क्या हो, अगर कोई लिंक्स डाले, आपने यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाला है, कुछ भी डाला है, तो उसका लिंक आप किस तरह से डाल सकते हो, ठीक है। buttons hover किस तरह से, hover is like when you place your mouse on them, for example इस बटन पे मैं hover कर रही हूँ तो इसका थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क हो जाता है, सही है। तो दिस इज hover, hover का आप जो है वो कर सकते हो कि आप hover कर रहे हो तो क्या हो, फील्ड लेबल्स का फॉन्ट क्या हो, फील्ड टेक्स्ट का क्या हो, रिक्वायर्ड हो फील्ड तो क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड लेजेंड क्या हो, मतलब अगर कोई चीज रिक्वायर्ड है कोई फील्ड तो उसका किस तरह से शो करे, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड आपका पूरा एक कस्टमाइज फॉर्म बन जाएगा, लोग लगेगा कि आपकी वेबसाइट का फॉर्म है, ठीक है। यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग यहाँ पर, तो दिस इज वन ऑप्शन दैट यू कैन यूज। अच्छा, मूविंग ऑन टू सेगमेंट्स, ठीक है। आपके ऑडियंस के सेगमेंट्स क्या है, ऑडियंस की सेगमेंट्स होती है जो भी आपके पास ऑडियंस है ना उसको आप डिवाइड कर दें डिफरेंट समझो डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। तो मेरे पास ऑडियंस है, मैं इसकी एक सेगमेंट बना सकती हूँ कि दीज आर कराची कराची कस्टमर्स, दीज आर लाहौर कस्टमर्स, और या फिर और मैं बना सकती हूँ प्रोडक्ट वाइज कि दीज आर माय कपकेक वाले कस्टमर्स, दीज आर माय केक वाले कस्टमर्स। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आप जो है वो सिर्फ एक ऑडियंस को ईमेल कर सकते हो, एक सेगमेंट को ईमेल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कराची लाहौर वाइज है डिवाइडेड, तो आई कैन से कि आई एम ओनली ईमेलिंग पीपल हु लिव इन कराची, बिकॉज मैं सिर्फ कराची वालों को सेल दे रही हूँ, मैं कराची वालों के लिए कैश ऑन डिलीवरी खत्म कर रही हूँ सिंस आई एम बेस्ड इन कराची, तो आई कैन ओनली सेंड ईमेल्स टू कराचीइट्स, ठीक है। ये इसकी एक है, तो आप आराम से सेगमेंट बना सकते हो। अच्छा, कैंपेन्स पे आते हैं, इसके सिर्फ 2-3 यूजफुल फीचर्स हैं आई वांट टू डिस्कस, स्पेशली ईमेल वाला इज अ वेरी यूजफुल थिंग। यस दिस, अच्छा दिस इज योर कैंपेन, इसमें हर चीज कैंपेन होती है, ठीक है। अगर आप कोई चीज नई क्रिएट कर रहे हो व्हिच इज दिस कॉल्ड कैंपेन। अब मुझे जो है वो मैंने कुछ यहाँ पर क्रिएट नहीं किया सिंस आई क्रिएटेड द अकाउंट अभी, अगर मुझे नया करना है तो आई कैन गो फॉर क्रिएट कैंपेन। अब वहां से मैं कर सकती हूँ व्हाट डू आई वांट। ईमेल में इनके पास जो है वो 3 ऑप्शन है। रेगुलर ईमेल क्या होता है, रेगुलर ईमेल इज कि आप उनको जो है वो एक रेगुलरली ईमेल भेजें, फॉर एग्जांपल वीकली, मंथली, ये जाता रहेगा। आपने सिर्फ एक दफा सेटिंग करनी है और आपके हर कस्टमर को हर हफ्ते खुद ही जाता रहेगा, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जब कोई नया प्रोडक्ट आए तब करें, यहाँ पर आप कैंपेन नेम लिखोगे। अच्छा, फिर मैं जो है वो ऑटोमेटेड ज्यादा डिस्कस करूंगी बिकॉज ऑटोमेटेड इज समथिंग रियली कूल। ऑटोमेटेड क्या करता है, ऑटोमेटेड इज नॉट कि वीकली कर देगा, ठीक है, वीकली तो आपका रेगुलर ईमेल हो गया। ऑटोमेटेड होता है कि जब कोई स्पेशल इवेंट है, अगर आपके किसी कस्टमर की बर्थडे है और आपने अपने फॉर्म पर डेट ऑफ बर्थ पूछी है, तो दिस इज ऑटोमेटिकली गोना सेंड देम अ हैप्पी बर्थडे ईमेल। अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर आता है, दिस इज गोना ऑटोमेटिकली ईमेल देम कि वेलकम टू योर दिस एंड यू कैन हैव आवर प्रोमो कोड इन आवर फर्स्ट ऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब्सक्राइब इन दैट टैग, टैग होता है कि आप जो है वो मेलचिम्प पे मेलचिम्प पर उनको एक टैग असाइन कर सकते हैं, ठीक है। टैग क्या हो गया कि दिस कस्टमर इज गोल्ड, दिस कस्टमर इज सिल्वर, दिस कस्टमर इज, सेगमेंट जो होती है ना परमानेंट होती है, टैग होता है कि आपने टैग लगा दिया, सिंपल टू कि आपने अपनी स्प्रेडशीट में आगे मार्क कर दिया कस्टमर को, उसको हम टैग कहते हैं। तो जब भी आपने किसी कोई नया टैग लगाया कस्टमर पर, ठीक है, तो एक ईमेल चली गई। या आपने अपनी ब्लॉग अगर किसी की है, कोई ब्लॉगर है यहाँ पर, अगर से नई ब्लॉग पे पोस्ट लिखा तो खुद ब खुद ईमेल चली गई कि एक नई आई है। अच्छा, दिस इज, ये सारे जो है वही ऑप्शंस हैं। ई कॉमर्स वाले भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है, बट इसको आपको अपने ई कॉमर्स स्टोर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कोई अगर आपका कार्ट छोड़ के चला जाता है, ईमेल कार्ट में जो है वो प्रोडक्ट डालता है, बाय नहीं करता, आप उसको ईमेल कर सकते हो, ठीक है। और कोई जो है वो जिसने विजिट किया था बट नहीं किया, तो आप उसको कर सकते हो। दीज आर और ऑटोमेटेड, दैट्स द बेस्ट फीचर, ठीक है, ऑटोमेशन है। तो हम जब आप ऑटोमेट करते हो चीजों को तो फिर दे आपका टाइम सेव होता है एंड द ईमेल्स आर सेंट ऑटोमेटिकली। सो दिस इज प्राइमरली व्हाट ईमेल मार्केटिंग इज, ठीक है। ये तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी। इसके बाद लेट मी थिंक, कुछ रह तो नहीं गया बताना। अच्छा, ईमेल जो है ना आपको 1 क्लिक से सारे कॉन्टैक्ट्स को चली जाएंगे, ठीक है।
then you can measure their, monitor their report. रिपोर्ट क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ हुआ नहीं है तो रिपोर्ट में आपको समझ शायद ना आए, बट रिपोर्ट इज वेरी डिटेल्ड। आपको ये तक पता चल जाएगा कि कौन सा कस्टमर था जिसने ईमेल खोला था और कौन सा कस्टमर था जिसने ईमेल नहीं खोला। यहाँ कोई रिपोर्ट है नहीं, बट अगर रिपोर्ट होती तो आपको वो दिखाता कहाँ कौन कस्टमर कहाँ से है, उसने कब खोला ईमेल, कितनी दफा ईमेल खोला और इसमें क्या लिंक पे क्लिक किया नहीं किया, काउंट के साथ, कस्टमर के आईडी के साथ प्रॉपर कि इस बंदे ने ईमेल खोला, इस बंदे ने क्लिक किया। ठीक है, तो यू गेट द आइडिया कि कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड है कौन सा नहीं है। दिस इज वेरी यूजफुल गेटिंग इनसाइट्स इनटू योर कस्टमर बेस। ठीक है, अच्छा तो बैक टू आवर कैंपेन्स। अच्छा हमने ऑटोमेशंस डिस्कस कर लिया, हमने कैंपेन्स डिस्कस कर लिया। एक वेबसाइट पे बाद में आती हूँ, मैं लैंडिंग पेजेस के बारे में बताना चाह रही थी। बैक टू कैंपेन्स। अच्छा, मोस्ट ऑफ यू मे हैव एन आइडिया व्हाट लैंडिंग पेज इज, बट इवन इफ यू डोंट, लैंडिंग पेज होता है जहां आप अपने कस्टमर को लेकर आते हैं बिफोर एन इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं लैंडिंग पेज की एग्जांपल दिखाती हूँ टू गिव यू अ बेटर आइडिया। सो आपने बहुत दफा देखा होगा कि यू हैव व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट, दिस इज व्हाट यू गेट एज अ पॉपअप। ठीक है, एक ऐसा पेज आ जाता है। कोई अच्छी एग्जांपल यहाँ नजर नहीं आ रही, लेट मी सी। लाइक ये आ जाता है साइड में, दिस थिंग इफ यू कैन सी माय स्क्रीन प्रॉपर्ली। ठीक है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ लैंडिंग पेज जो आपको कहीं से लेकर जाता है। ठीक है, कहीं आपको लैंड करवाता है कस्टमर को और वहां से उसको किसी ट्रांजैक्शन की तरफ लेकर आता है। ठीक है, दिस गेट अ फ्री कोड। अब यहाँ पे यूजर अपनी डिटेल्स जब डालेगा ना तो ये डायरेक्ट मेलचिम्प में जाएगी, मेलचिम्प में डिटेल आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द पर्पस ऑफ अ लैंडिंग पेज। सीधा आई थिंक और भी होंगे। दिस अगेन इज अ लैंडिंग पेज। आपने ये बहुत कॉमनली देखेंगे, इनको हम लैंडिंग पेजेस कहते हैं। ठीक है, तो मेलचिम्प आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप अपने यूजर्स को एक लैंडिंग, हाँ वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में मोर कैन नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई एम गोना क्रिएट अ लैंडिंग पेज और लेट्स जस्ट नेम इट ABC फॉर नाउ। और अगेन इट इज वेरी 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 कस्टमाइजेबल, तो लगेगा कि आपकी बिल्कुल वेबसाइट का पार्ट है। ठीक है, एंड में आपको ना एक URL देगा, एक लिंक देगा कि ये आपके लैंडिंग पेज का लिंक है, उसको आप जो है अपने फेसबुक पे भेज सकते हो, कहीं पर भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। अच्छा सही, तो ये जो है वो या ओके, सो ये इनके जो है वो सारे टेम्पलेट्स हैं दैट यू कैन यूज। उप्स, सॉरी मुझसे क्लिक हो गया था। सो दीज आर द टेम्पलेट्स दैट यू कैन यूज। ठीक है, अगर आपको पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है तो आप ये ले सकते हो जिसपे आप अपनी पेमेंट एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सर्विस है ना, यू वांट कि आप जो है वो ई बुक्स बेचते हो। ठीक है, यू राइट ई बुक्स एंड यू सेल देम, सो यू कैन हैव कि मेरी ई बुक डाउनलोड करने के लिए यू नीड टू गो ऑन दिस लिंक, यू नीड टू टाइप इन योर डिटेल्स, you need to make a payment and then you can download from the same link. So you don't have a website, you have a landing page. Landing page सिर्फ एक पेज का होता है। ठीक है, एक पेज है खाली। वेबसाइट इस पूरी बड़ी सी वेबसाइट, इसमें आपका अबाउट भी होगा, आपकी ब्लॉग हो सकती है, आपकी गैलरी हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। बट अगर आपको सिंपल रखना है चीजों को तो वो अच्छा आई डोंट नो ये स्क्रॉल डाउन क्यों नहीं कर रहा। अच्छा कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन यूज, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आराम से यूज कर सकते हैं कोई भी और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो लेट्स पिक वन। आई जस्ट वांट के लोगों का मेरे पास जो है वो ईमेल एड्रेस आए। ठीक है, तो मैं ये यूज कर रही हूँ। इसको भी मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ। दीज आर द ऑप्शंस। ये ब्लॉक्स है मेरे पास कि मुझे इमेज का ग्रुप डालना है या फिर मुझे इमेज का कार्ड डालना है, क्या डालना है ना, ये बहुत स्लो स्क्रॉल कर रहा है। सो या सो व्हाट डू आई वांट their email address,
ठीक है, एंड मैं इसको चेंज कर सकती हूँ हेडिंग को ऑब्वियसली दिस, एंड देन आई कैन चेंज द इमेजेस। ठीक है, सब चेंज हो जाएगा आपकी वेबसाइट, आपकी थीम के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। सही, they have style, you can have settings, anything you want। फिर एंड में आपको इसका URL दे देगा। ठीक है, तो I'm not actually doing this, so let's just go back, I'll just click on save and close। तो फिर इसका एक लास्ट फीचर रह गया हमारा मेलचिम का, then we are done with this। ठीक है, अच्छा ईमेल्स का शायद मैं बताना भूल गई, ईमेल जब आप सेंड करते हो ना, तो ये वापस होम पेज पे ले आया है। तो ईमेल जब आप सेंड करते हो तो ईमेल के भी सेम यही ऑप्शन है कस्टमाइज करने के, वहां पर भी आपको ब्लॉक्स दिए हुए हैं और सब कुछ दिया हुआ है कि आप जो है वो उनको जो है वो मैं एक करके बता देती हूँ इफ यू वांट। ठीक है, तो आई वांट एन ऑटोमेटेड ईमेल, आई वांट अ हैप्पी बर्थडे, या आई वांट सो लेट्स रेगुलर ईमेल करते हैं जो कि हर मंथ लोगों को जाए। लेट्स नेम इट ABC or whatever। So yeah, so you can have add recipients पे click करोगे तो you can have all your entire list। who is sending this, तो आप इस पे अपना email address डाल सकते हो। subject email का क्या होगा, design email। ठीक है, this is particularly interesting। these are email के templates। अगर आप कोई सेल के बारे में अनाउंसमेंट दे रहे हो, you can use this, you can sell your product। उसी में नीचे बटन होगा start shopping एंड वो क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट पर या आपकी फेसबुक पेज पर जहाँ आपके प्रोडक्ट्स हैं वहां ले जाएगा। ठीक है, ये ईमेल इस तरह से आएगी। ईमेल भी पूरी कस्टमाइज कर सकते हो, लोगो, पिक्चर, कलर, सब कुछ। कुछ आई थिंक अपग्रेड टू यूज है। अच्छा, ये 2 फ्री है इनके। ठीक है, यू कैन कस्टमाइज दीज इजीली, वेरी इजीली। ठीक है, सो the last thing I want to discuss about Mailchimp is their website, जो कि नया आया है अभी इनका फीचर। ठीक है, और इसमें आपने जो है वो कोई भी नाम लिखा, मैंने लर्नोवेटर देती हूँ तो ये आ जाएगा .mailchimpsites.com। ठीक है, इट्स लाइक वर्डप्रेस, आई नो। तो दिस इज अनदर ऑप्शन कि आप अपना जो है वो साइट बना सकते हो और फिर इसका जो URL है इसको आप या तो टाइनी URL से या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन से कर सकते हो। आई कैन हैव होम पेज इस तरह से, इसको भी मैं एडिट करूंगी तो हर चीज एडिट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें मैं ऐड पेज कर सकती हूँ, जैसे ये मेरी वेबसाइट हो गई है। ठीक है, इस पेज का नाम आप लिख दो, बता दो क्या है, फिर उसको जो है वो एडिट कर लो पूरा अच्छी तरह। यहाँ नाम लिख के मैं अगर नेक्स्ट करूंगी, आगे बढ़ूंगी, ऐड करूंगी तो ये देगा। तो आप जो है वो मेलचिम्प पर वेबसाइट भी बना सकते हैं अपनी। अगेन इंटायरली कस्टमाइजेबल एंड सब ड्रैग एंड ड्रॉप है, नो कोडिंग एट ऑल, ट्रस्ट मी, नो कोडिंग एट ऑल, सब ड्रैग एंड ड्रॉप है। सब जो है वो ऑप्शंस मैंने अभी आपको दिखाए किस तरह से थे। ठीक है, so this is all from Mailchimp। if you have any questions about Mailchimp तो let me know अभी। ठीक है, और अगर कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो before we move on to our next service please let me know। Assalamu alaikum. My name is Yeah, Ramesa welcome। Khan from Chennai University. Miss, I want to know what is the major disadvantage of WordPress? As I have learned, web designing, it takes 6 months to learn the code. And regarding when you come to WordPress, it takes few days to learn it. So is there any major अच्छा, वर्डप्रेस का डिसएडवांटेज एज सच, देखो एक चीज होती है कि कोड अब जब आप लिखते हो ना, कोडिंग, तो ऑब्वियसली कोडिंग इज वेरी इंटेंसिव। ठीक है, आपको जो है वो पूरा कोड करना है हर चीज को करेगा, बट व्हेन यू कोड यू हैव द पावर टू डिजाइन योर पेजेस इन योर हैंड। आपकी मर्जी है आप कहाँ क्या करते हो। वर्डप्रेस में कस्टमाइजेबल है, अग्रीड, बट इज इट इंटायरली कस्टमाइजेबल? क्या मैं वर्डप्रेस में कुछ वेबसाइट्स होती हैं, अगर आपने देखा हो, काफी काफी इंटरेक्टिव होती हैं,
उसमें जो है वो ऊपर सबको, लेट मी शो यू अ वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है affinity.com, ये if you have seen, ठीक है। तो इफ यू नोटिस उनकी वेबसाइट इस तरह से बनी हुई है, यू कैन नॉट हैव इट ऑन वर्डप्रेस, इट्स एंटायरली कोडेड, ठीक है। इट्स वेरी डिफरेंट वेबसाइट। इनका एक बहुत मजे का फीचर था, when I click on this, yeah, yeah, don't click this, ठीक है। So this is a rock paper scissor game जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाया हुआ है। Now this cannot be done through WordPress, ठीक है। WordPress एक लिमिटेड वो है, वो आपको ई कॉमर्स की सारी फैसिलिटीज देगा, आपको ई कॉमर्स वेब पूरा स्टोर बना देगा, आपको आपकी ब्लॉग की हर चीज बना देगा, आपका सब कुछ, आपको फोटोग्राफी स्टोर है, आपका सर्विसेज सेल करते हो, सब कुछ कर देगा। बट अगर आपको कोई चीज हटके करनी है, डिफरेंट करनी है, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर, तो यू नीड टू कोड इट, सही है। लेकिन जब आप कहीं वैसे बिजनेसेस के लिए इंटर्नशिप करते हो, जो सिंपल है, एक वेबसाइट चाहिए हमें अपने बिजनेस चलाने के लिए, आप हमें वेबसाइट बना कर दो, तो आपको वर्डप्रेस इज अ वेरी वेरी गुड टूल। बट कुछ बहुत डिफरेंट सी वेबसाइट चाहिए, उसमें ये फीचर भी हो, उसमें इंटरैक्टिव हो बहुत, उसमें एक चैटबॉट भी खुलता हो, उसमें ये सब हो, तो यू नीड टू कोड इट, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Thank you, Miss. Miss, my question, next question is, what is the major difference of web coded website and WordPress? मेजर डिफरेंस यही है, मेजर डिफरेंस यही है कि जो कोडेड होती है दैट्स डिफिकल्ट टू मेक, क्योंकि काफी टाइम लगता है आप स्क्रैच से कोड लिख रहे हो तो। बट अगेन वेरी इंटरैक्टिव, आपकी हर चीज मर्जी से हो रही होगी, ठीक है। हर चीज आपको किस तरह से हेडिंग लिखनी है, अगर आपको हेडर नहीं चाहिए, हेडर नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकी ये मैं दिखा रही थी वेबसाइट है, दिस इज रॉक पेपर सीजर गेम, ठीक है। ये आप वर्डप्रेस पे नहीं बना सकते, यू नीड टू हैव सम कोड, ठीक है। एंड बाय द वे वर्डप्रेस का वैसे अगर आप वर्डप्रेस पे भी आपकी कोडिंग हो सकती है, आप अपना एचटीएमएल कोड भी डाल सकते हो वर्डप्रेस पर, बट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। एनीवे, वर्डप्रेस पर सब आप HTML और CSS तक है। HTML क्या करते हैं, HTML आपकी चीजों को अलाइन कर, HTML एक लैंग्वेज है जो आपकी चीजों को अलाइन करती है कि कौन सा बटन कहाँ आएगा। CSS उनको डिजाइन करती है, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। देन यू हैव जावास्क्रिप्ट जो आपकी चीजों को मूविंग बनाती है कि अच्छा ये करो, अच्छा ये आए, ये मूव होता हुआ हो मेरी वेबसाइट पर, थोड़ा अच्छा सा हो। तो दैट जावास्क्रिप्ट की जो फिर वो है ना, वो वर्डप्रेस में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था। आई होप दैट नाउ अब क्लियर हो गया होगा कि बहुत अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरैक्टिव और बिल्कुल इंटायरली कस्टमाइज चाहिए, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंग, तो यू गो फॉर कोडिंग। इफ यू वांट अ सिंपल वेबसाइट जो काम सही करती हो, एक वेबसाइट का काम करती हो, जो कस्टमाइज हो, उसके कलर्स, फॉन्ट, स्टाइल, लेआउट सब कस्टमाइज है, यू गो फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। Yes, Miss. Miss, my next question is, how can we know about the ranking of our website in WordPress? Ranking of a website on WordPress, I don't really know about ranking का, मैंने इतना इस पे काम नहीं किया है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि आप रैंकिंग किस तरह से पता कर सकते हो। बट रैंकिंग एज एन वर्डप्रेस की अपनी नहीं होती है, यू हैव वेबसाइट की रैंकिंग। अगर आप गूगल सर्च के इसकी बात करो कि आपकी वेबसाइट कहाँ रैंक करती है, तो यू हैव आपकी वेबसाइट कहाँ रैंक करती है इंटायरली, इट्स नॉट अप टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की अपनी कोई रैंकिंग होती नहीं है सच, ठीक है। लेकिन अगर आप पता करना चाहते हो कि वेबसाइट्स में कहाँ रैंक करती है आपकी वेबसाइट, तो वो तो फिर गूगल पे आप देख सकते हो कि आपकी कहाँ रैंक कर रही है, टॉप पे है नहीं है। आई हैवंट डन दैट, आई कांट टेल यू फॉर श्योर, बट वेबसाइट वर्डप्रेस किसी ऑर्डिनरी वेबसाइट की तरह ही ट्रीट होती है। And Miss, the last question is, how can we know about our website is hacked? वेबसाइट इज हैक्ड, अगेन आई डोंट रियली नो वेबसाइट हैक हो गई क्यों, आपको एबनॉर्मल एक्टिविटी नजर आएगी कि आपकी वेबसाइट हैक हो गई है, कस्टमर्स की कुछ एबनॉर्मलिटी होगी, ऑर्डर्स आ रहे होंगे, कोई अगर हैक कर लेता है तो अगर कोई हैक कर लेता है तो ये अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर सकते हो अपनी वेबसाइट। अगर आपको लगता है कि ये चेंजेस आ रही हैं, चीजें यहाँ से वहाँ हिल रही हैं और कुछ ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, आपकी डिटेल्स, डेटा गायब हो रहा है, पीछे कस्टमर का बेस गायब हो रहा है, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए, Thank you, सही, Miss. नो प्रॉब्लम। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सर्विस, ठीक है। मैं बाकी सर्विसेज इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी जितनी डिटेल मैंने ये बताया था, तो लेट्स गो ऑन टू द
थर्ड वन जो बहुत डिटेल में होने वाली है, एंड देन विल डू जस्ट क्विक ओवरव्यू बाकी सर्विसेज का. The third is our Google Analytics. ठीक है. What is Google Analytics? Google Analytics is a platform that allows you to monitor your website activity. ठीक है. Website activity की पूरा detailed overview देता है आपको. तो this is very again in demand skill है Google Analytics. मार्केटिंग स्टार्टअप्स में अगर आप जॉब करने चाहें, उनका कहें कि मैंने जो है वो गूगल, इसकी सर्टिफिकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसका सर्टिफिकेट भी ले लो, अपनी सीवी पे डाल दो. ठीक है. तो उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है, वो आपको हैंड ऑन करवाते रहते हैं सर्टिफिकेशन में. दिस इज द प्लेटफॉर्म. लेकिन मैं पहले सर्टिफिकेशन का बताती हूँ. तो अगर आप अपनी सीवी में डालो तो काफी ज्यादा आपकी वो बढ़ सकती है कि अच्छा इसको ये भी आता है. ठीक है. गूगल एनालिटिक्स एकेडमी का है ये. तो इसके दो कोर्सेज हैं, एक एडवांस्ड एनालिटिक्स है, एक एनालिटिक्स है. दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये कर लो तो ये आपको पूरा सिखा देगा. गूगल एनालिटिक्स फॉर बिजनेस एंड एडवांस गूगल एनालिटिक्स. अच्छा, दिस इज न्यू. जब मैंने किया था तब ये नहीं था. फॉर पावर यूजर्स तो ये भी कर सकते हो. देन गूगल टैग मैनेजर फंडामेंटल्स, ये भी एक बहुत यूजफुल कोर्स है. अगेन हैव दिस कोर्सेज ऑन योर सीवी, मेक्स अ गुड इंप्रेशन. ठीक है. तो अच्छा, लेट्स गो टू गूगल एनालिटिक्स. नॉट सर्टिफिकेशन बट द प्लेटफॉर्म. ठीक है. तो गूगल एनालिटिक्स के मैंने सिर्फ गूगल एनालिटिक्स लिखा एंड हियर आई एम. ये खोल रहा है प्लेटफॉर्म. मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देती हूँ कि प्लेटफॉर्म हाउ डज दिस वर्क. मे बी आपके इतना यूजफुल ना हो. ठीक है. मे बी क्या, आई डोंट थिंक इतना यूजफुल होगा स्टार्टअप के लिए अभी इस स्टेज पर. बाद में जाके डेफिनेटली यस. ठीक है. तो लेट मी सी. So, या आपके अभी नहीं होगा यूजफुल, बट या अगर आप किसी का करना चाहते हो, आप अपना फ्रीलांस बिजनेस है, अगर फ्रीलांस ऑर्डर लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि आई हैव एक्सपर्टीज इन गूगल एनालिटिक्स. हम आपकी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करके दे सकते हो. तो यू कैन इजीली गेट ऑर्डर्स फॉर दैट अनपेड गुड. अच्छा, एनीवे दिस इज द होम पेज. ठीक है. ये आपको बता रहा है कि आपकी वेबसाइट पे, ये दिस इज नॉट फॉर माय वेबसाइट, ये एक डमी वेबसाइट है गूगल मर्चेंडाइज स्टोर. ये आपको जब आप कोर्स करते हो ना तो ये आपको इसी पे सिखाता है. इनका एक गूगल मर्चेंडाइज स्टोर है, उसी पे सिखा रहा है. उसकी वेबसाइट है, इट्स एन ई-कॉमर्स स्टोर लाइक daraz.pk की तरह. ठीक है. So you have 263 active users right now. They have on their website. Active users right now means कि real time में इस वक्त बिल्कुल, not कि entirely कब आए. तो आप देख रहे हो अकाउंट चेंज हो रहा है जैसे जैसे यूजर आ रहा है, जैसे जैसे यूजर जा रहा है, दिस काउंट इज चेंजिंग. और कौन से पेजेस पर है? मोस्टली होम का पेज एक्टिव है, इस पे 3 यूजर्स हैं. फिर ये प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट पर जो है वो एक यूजर है, इस पर एक है, इस पर एक है. ठीक है. तो ये तो आपका रियल टाइम में हो रहा है, यानी कि लाइव दिखा रहा है कि अभी क्या हो रहा है. बिल्कुल. ठीक है. बहुत डिटेल्ड है, एक एक चीज आपको इसमें पता चल सकती है. बट देन आई वांट टू नो कि वैसे ओवरऑल मेरी ऑडियंस कौन है, कहाँ से आ रहे हैं लोग, कौन से लोग ज्यादा विजिट कर रहे हैं. ठीक है. उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं, कौन सी डिवाइसेस से आ रहे हैं, सब आपको जो है वो ये बता देगा. So this is your overview कि आपके यूजर्स कितने हैं, न्यू यूजर्स कितने हैं, और पुराने यूजर्स, रिटर्निंग यूजर्स कितने हैं, कितने सेशंस ले रहे हैं, वो पेज व्यूज कितने आ रहे हैं आपके. बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट होता है कि आपकी वेबसाइट किसी ने खोली और फौरन बंद कर दी. ठीक है. तो दिस इज डिवाइडेड बाय, आई थिंक आपका जितने लोगों ने बंद कर दी डिवाइडेड बाय टोटल यूजर्स मल्टीप्लाई बाय 100. 46 इज अ वेरी बैड बाउंस रेट. मतलब 46% लोग आपकी वेबसाइट खोल के ही बंद कर देते हैं, इसका ये मतलब हुआ 46%. ठीक है. तो अच्छा, एवरेज लोग 3 मिनट लगा रहे हैं आपके सेशन पर, विच इज नॉट गुड. 3 मिनट तो कुछ भी नहीं होता. अगर आपकी वेबसाइट खोल के इंसान 3 मिनट सिर्फ देख के बंद कर देता है. तो ये इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हो. देन यू हैव लैंग्वेज, कितने लोग, इस पर मैं क्लिक करूंगी ना तो ये मुझे और डिटेल्स दिखाएगा. ठीक है. मैं अभी इतना नहीं डिटेल में जा रही. कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, सब आपको पता चल रहा है. 97 4 यूजर्स का जो है वो आपको सिटी नहीं पता, बाकी यूजर्स जो है वो इन सिटीज से आ रहे हैं.
देन उनका ब्राउजर कौन सा है, क्रोम, सफारी, एज। ये सिस्टम वाली चीजें आपको इस तरह हेल्प करती है कि अपनी वेबसाइट जो है ना उससे कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे यूजर्स जो है वो क्रोम के हैं, बट मेरी वेबसाइट क्रोम पे अच्छी नहीं चलती, एक्सप्लोरर पे अच्छी चलती है, तो आई हैव अ लॉस ना। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो बाउंस रेट है वो कौन से कस्टमर्स का ज्यादा है। तो क्या पता आपकी वेबसाइट मोबाइल पे नहीं चलती हो, ठीक है, मे बी इनकी वेबसाइट जो है विंडोज मोबाइल पे सही नहीं चलती हो। ठीक है, तो इसलिए इनके सिर्फ 2 यूजर्स आए हैं, वरना देखें आप एंड्रॉइड पे iOS पे कितना आया। ठीक, सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, उन्होंने क्या, वो स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। अगर आपके कस्टमर्स की ज्यादातर कस्टमर्स की रेजोल्यूशन बहुत छोटी है तो यू डोंट वांट टू हैव कि आप बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस डालो अपनी वेबसाइट पर कि वो देख ही ना पाए सही से, इनका स्क्रीन साइज काफी छोटा होगा। ठीक, तो दिस इज ओवरव्यू। इसके बाद अगर आपको इन डेप्थ जाना है ना इसकी भी, रेजोल्यूशन की भी, ये मैं आपको लैंग्वेज की दिखाती हूँ, तो ये आपको इसका भी इन डेप्थ एनालिसिस दिखा देगा कि इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलने वालों का कितना है, इंग्लिश बोलने वालों का बाउंस रेट कितना है, तो यू गेट द आइडिया। ठीक है, देन वी हैव देयर बिहेवियर, फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिसेंसी, कितने फ्रीक्वेंटली आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं और कितने रिसेंटली आ रहे हैं, ये वो है। टेक्नोलॉजी टेल्स यू देयर ब्राउजर एंड नेटवर्क। ठीक है, देन यू हैव बिहेवियर में देखते टेक्नोलॉजी, मोबाइल में आपको डिवाइसेस कौन सी हैं, ओएस आईओएस कौन सा है, सॉरी ओएस कौन सा है बता देंगे, आईओएस है नहीं है। ठीक है, क्रॉस डिवाइस जो है ना आपको बताएगा कि कहाँ से आ रहे हैं यूजर्स आपके, दूसरी डिवाइस से आपकी वेबसाइट पर आए हो अगर। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, बिकॉज ये गूगल वालों का अकाउंट है, आई डोंट हैव एक्सेस दिस बिकॉज दिस इज जस्ट बीटा वर्जन, तो लेट्स जस्ट स्किप दिस फॉर नाउ। ठीक है, तो दिस इज योर ऑडियंस ओवरव्यू। एक्विजिशन पे चलते हैं अब। व्हाट इज एक्विजिशन, एक्विजिशन इज कि कस्टमर वेबसाइट पर आया कहाँ से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट करो। क्या आपके कस्टमर सोशल से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं, आपके कस्टमर जो है वो गूगल से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सर्च इज गूगल की सर्च, राइट, किसी के रेफरल से आ रहे हैं, या डिस्प्ले एड्स, गूगल पे जो आप डिस्प्ले एड लगाते हैं उससे आ रहे हैं, गूगल पे आपने पेड सर्च का एड लगाया है उससे आ रहे हैं, या डायरेक्टली आपका यूआरएल अपना लिखकर, आपका लिंक लिख कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताता है, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि स्पेंड कहाँ करें, कौन सी चीज ज्यादा चल रही है। तो देखो इनके ज्यादातर कस्टमर्स डायरेक्ट आए, बट मे भी क्योंकि हमारा आपका स्टार्टअप हो तो हमारा भी यही होता है कि ज्यादातर कस्टमर जो है वो सोशल मीडिया से आते हैं, बिकॉज वी प्रमोट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये है। इसकी भी आप चाहें तो डिटेल्स में देख सकते हैं एक एक को। फॉर एग्जाम्पल आई वांट सोशल में जाऊँ, अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे पूरी डिटेल बता देगा, यूट्यूब से कितने आए हैं, लिंक्डइन से कितना आया है, रेडिट से कितना है। तो मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगी तो अगेन मुझे और डिटेल्स पता चल जाएंगी कि 2 यूजर्स आए थे, उसमें से 2 लोगों ने सेशन क्रिएट किया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अच्छा, इसमें यही ऑप्शन है, यू हैव गूगल एड्स, सोशल कैंपेन्स, देन बिहेवियर। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज आई बिलीव कि खुद एक्सप्लोर करने की चीजें मैं यहाँ पर बता दूंगी, बट इतना फायदा नहीं होगा जितना आपको खुद एक्सप्लोर करने में फायदा होगा। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। बिहेवियर, बिहेवियर बताता है आपकी साइट की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। ठीक है, पेज व्यूज कितने आ रहे हैं, यूनिक पेज व्यूज कितने आ रहे हैं, विच मीन्स के 79,000 जो है वो पेज व्यूज टोटल थे, तो उसमें से 50,000 यूनिक थे, बाकी आपके रिटर्निंग कस्टमर्स थे। रिटर्निंग कस्टमर्स मीन्स गुड थिंग, कस्टमर्स आर हैप्पी, दे आर कमिंग बैक। बाउंस रेट इज 46.15%, बाउंस होता है कि खोलते ही फौरन बंद कर दिया। एग्जिट से इसके बाउंस और एग्जिट में फर्क होता है, बाउंस फौरन बंद करना था, एग्जिट होता है कि पूरा देखा, कोई कुछ नहीं किया, पूरा देखा, आप नीचे तक आए, आपने इंप्रेशंस दिए, हमने जो है वो चीजों पर देखा, ब्राउज किया, डिफरेंट प्रोडक्ट देखे, लेकिन आपने कुछ ट्रांजैक्शन नहीं की और बंद कर दिया, दैट्स योर एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट कम है। ठीक है, 21.14% एग्जिट करते हैं, बाकी खरीद लेते हैं। देन यू हैव कि आपको कौन से पेज पर आ रहे थे लोग ज्यादा, कौन से पेज है जिसपे लोग ज्यादा है। अगर मैं होम पे भी क्लिक करूँ तो ये मुझे और अंदर ले जाएगा। ठीक है, दिस इज गोना शो मी कि होम पे क्या हो रहा है। अच्छा, देन यू हैव कंटेंट ड्रिल डाउन, कौन सा कंटेंट पे आ रहे थे, कंटेंट की आपके पास लिस्ट आ गई है, स्टोर पे, साइन इन डॉट एच टी एम एल पे। ठीक है,
लैंडिंग पेजेस पे आप देख सकते हो कौन से लैंडिंग पेजेस पे कितने यूजर्स आ रहे थे। एग्जिट पेजेस पे आप देख सकते हैं कौन से पेजेस थे इंसान जिससे आपका कस्टमर ने एग्जिट किया। कुछ लोगों ने होम से एग्जिट कर दिया, कुछ ने बास्केट में जाकर एग्जिट किया। इससे आपको पता चलता है मे बी दे वर कंफ्यूज्ड अबाउट द प्राइस और मे बी डिलीवरी चार्जेस तरह के थे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर साइट स्पीड, साइट सर्च, ये सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखना। अच्छा, कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कन्वर्जन में आपके गोल्स होते हैं, ये आप खुद क्रिएट करते हो। ठीक है, मेरा गोल है कि मुझे इतनी ट्रांजैक्शंस करनी है, मैंने ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इसकी एक बहुत अच्छी चीज है फनल विजुअलाइजेशन, जो आपको दिखाता है कि आपके कितने लोग कार्ट में आए। अच्छा, अब 2000 लोग कार्ट तक घुसे, कार्ट वाले पेज तक आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल cart.com तक आए 2000 लोग, उसमें से 1900 ने एग्जिट कर दिया। ठीक है, और सिर्फ 372 थे जो आगे बिलिंग तक गए। तो यू गेट द आइडिया कि लोग कार्ट को अबैंडन करें, कार्ट में प्रोडक्ट्स डाल रहे मींस दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट्स बट देयर इज समथिंग दैट्स स्टॉपिंग देम फ्रॉम बाय। तो क्या करना होगा, मे बी उनको आप एक प्रोमो कोड दे दो, जब वो कार्ट में डालें तो आप उनको बोलो आपने कार्ट में 5 प्रोडक्ट्स डाल दिए, यू हैव प्रोमो कोड नाउ टू मेक देम स्टे। ठीक है, फिर देन बिलिंग इज शिपिंग, तो 112 लोग एग्जिट कर गए। ठीक है, एंड ये दिस आल्सो शोज के एग्जिट करके वो कहाँ पर गए हैं, कौन से पेजेस पर गए हैं। ठीक है, एंड 260 लोग जो है वो पेमेंट की, मे बी जो 112 लोग थे दे वर नॉट सैटिस्फाइड विद द शिपिंग चार्जेस, उनको लगा शिपिंग बहुत ज्यादा है। तो अ लॉट ऑफ स्टोर्स Amazon वगैरह यूज दिस, ये इसी तरह का चीज है ताकि उनको पता चले कि आज कितने लोग कस्टमर आने अपनी ई कॉमर्स स्टोर की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। फिर पेमेंट में 46 लोग सिर्फ जो है वो रिव्यूज की तरफ गए, बाकी 214 जो है वो एग्जिट करके चले गए। ठीक है, फिर जिन्होंने रिव्यू पढ़े थे उसमें से 29 लोग रिव्यू पढ़ के चले गए, 79 तो मे बी रिव्यूज आर बैड, तो आपको मे बी यू नीड टू लुक एट योर रिव्यूज कि क्या था कि 29 लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया। ठीक, so this gives you a very good insight into what's working for you and what's not. Then you have e-commerce जिसमें आपको बताएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन कितनी हुई है और कितने जो है वो आपकी रेवेन्यू कितना है, ट्रांजैक्शन कितनी है, कौन से प्रोडक्ट्स टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं आपके। ठीक है, फिर और मैं क्लिक करूंगी तो और डिटेल्स आ जाएंगी इनकी। क्या, अच्छा कूपन कोड नहीं था कोई, अच्छा सेट नहीं हुआ था again this। ठीक है, now to the important question, how to add this to your website। इतनी वेबसाइट पे डालोगे कैसे, उसके लिए हम एडमिन पैनल पे जाएंगे। ठीक है, एंड I'll click on tracking info, user ID। ठीक है, ओके, अच्छा आई थिंक आई हैव टू ट्रैकिंग कोड पे आ जाते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग कोड। ठीक है, ट्रैकिंग कोड पे जब आप जाओगे तो ये आपको दो चीजें दे रहा है कि आपका ट्रैकिंग आईडी दे रहा है और एक कोड दे रहा है। अब इसके दो तरीके हैं करने के सेटअप, दिस वेरीज फ्रॉम वेबसाइट टू वेबसाइट, बट मैं वर्डप्रेस का प्राइमरीली बता रही हूँ। वर्डप्रेस पे यू कैन आइदर पेस्ट दिस कोड टू योर साइट। ठीक है, आपकी साइट पे एक वेबसाइट होगी, एक पेज होगा, सॉरी, पीछे header.php नाम का, उसमें आप उसका जो हेड सेक्शन है उसमें पेस्ट कर सकते हैं। दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए चीजों का, बट इफ नॉट नो वरीज। आप जो है वो एक अपने, जिस तरह मैंने प्लगइन बताई थी वर्डप्रेस पे, जिसमें हमने एलिमेंटर की प्लगइन डाली थी, उस तरह आप गूगल एनालिटिक्स की एक प्लगइन होती है, GA समथिंग, आई थिंक GA ही नाम है। ठीक है, आप गूगल एनालिटिक्स लिखोगे वो आ जाएगी, वो सिर्फ आपसे ट्रैकिंग आईडी मांगेगा और आपने उसको ये ट्रैकिंग आईडी दे देना है। ठीक है, जब आप उसमें ये एंटर करोगे ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो गई। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट किसी और उस पर बनी हुई है, ठीक है, तो आप अगर कोडेड है तो आपको यू नीड टू यूज दिस फॉर द कोडेड वन, बट अगर आपकी वेबसाइट किसी और चीज पर बनी हुई है, wix.com पे भी बनाते हैं लोग, शॉपिफाई पे भी बनाते हैं, तो यू कैन हैव डिफरेंट तरीके हैं उनको कनेक्ट करने के जो आप आराम से गूगल कर सकते हो, बट दिस ट्रैकिंग आईडी ही यूज होता है हर जगह। ठीक है, मे बी प्लगइन डालने का तरीका डिफरेंट हो, बट यू यूज दिस ट्रैकिंग आईडी। ये डालोगे आपकी वेबसाइट कनेक्ट रहेगी। थोड़ी कंफर्मेशन मांगेगा आपसे कि ईमेल एड्रेस वो करो, कंफर्म करो, ये करो, बट बहुत इजीली आई थिंक 5 मिनट्स में हो जाता है। So this is it from Google Analytics. Any questions for this?
No questions, all clear? Okay, so if all is clear, let's move on to our next service. ठीक है, next I'll be talking about आपने अपनी वेबसाइट बना लिया, आपने ईमेल मैनेज कर लिया, इसके बाद आपने जो है वो अपना वेबसाइट को मॉनिटर भी कर लिया. लेट्स मूव ऑन टू ईमेल मैनेजमेंट. ठीक है, ईमेल मैनेजमेंट मैं इतना डिटेल में नहीं सिखाऊंगी. आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू कि आप क्या कर सकते हो. ठीक है, अच्छा, तो ईमेल मैनेजमेंट है क्या? पहले तो अक्सर आपने कंपनीज के जो ईमेल आते हैं वो देखे होंगे कि कंपनी का नाम पर्सन का नाम @company.com होता है, लाइक उसका डोमेन होता है. तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो जैसे देयर इज ज़ोहो मेल. ठीक है, ज़ोहो मेल की प्राइसिंग में जाते हैं, प्राइसिंग पेज पर, जहां पर जाकर आप, सॉरी यार, जहां पर जाकर आप अपनी वेबसाइट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर सकते हो, क्रिएट ईमेल. ठीक है, this I'm talking about this forever free plan. okay, तो इसमें क्या होगा, up to 5 यूजेस हैं, मीनिंग कि आपके 5 ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक मेरा हो गया admin@learnovate.pk, एक हमारा है info@learnovate.pk, एक I can have talatzubair@learnovate.pk, एक I can have HR@learnovate.pk. इस तरह के 5 हो सकते हैं. ठीक है, और इसके बाद आपको 25 MB अटैचमेंट लिमिट जो कि हॉटमेल जीमेल में यूजुअली होती है, 5 GB पर यूजर, विच इज ओके फाइन. ठीक है, ईमेल होस्टिंग फॉर अ सिंगल डोमेन. अगर आप इसको ट्राई नाउ करेंगे, ये आपसे जो है वो अपना आपका डोमेन मांगेगा. तो इसको आप बता सकते हो कि आपका डोमेन क्या है. फॉर एग्जांपल वी हैव learnovate.pk, तो यू कैन से कि learnovate.pk है, जो भी आपका है. थोड़ा टाइम ले रहा है. और सिंस आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, मेरा साइन अप हुआ हुआ है, इसलिए मुझे ये दिखा रहा है. But let me open this in incognito. Okay, so I'm just gonna show you this. अगर मैं यहाँ पर जाऊँ and I click on sign up now, ठीक है, तो ये मुझे sign up करवा देगा and I can have my domain registered with this. ठीक है, तो let's just quickly have a look at this. Yeah. ठीक है, यहाँ पर आपने अपना डोमेन अगर ऑलरेडी है तो आपने डाला, बाय करना है तो बाय इट, बट वी आर नॉट रियली टू बाय. उसमें आप डाल सकते हो learnovate.pk ऐड कर सकते हो. आपको ईमेल एड्रेस बना के आपके जो है वो दे देगा, आपको ऑप्शन देगा कि आप बना लो. ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम ज़ोहो मेल. मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लोर करने वाली चीज. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सर्विस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. ठीक है, so no questions. So we next move on to canva.com. Canva, I think आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने use किया हुआ होगा. This is a very very common application for designing your social media posts. ठीक है, और this is a very good substitute to hiring a graphic designer. ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा customizations हैं, सब कुछ है. The best part is कि आप जो है वो यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हो
for example, I have a cooking channel on YouTube. I'll just write cooking. ठीक है, मेरी कोई नई रेसिपी पोस्ट हुई है, नहीं तो पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया. आई कैन चूज मुझे कौन सी कैटेगरी, मुझे लोगो चाहिए, आप इस पे लोगो डिजाइन भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, फ्लायर्स, कुछ भी कर सकते हैं. दे हैव आई थिंक billions of designs, thousands of बहुत कम है, billions of designs for everything, which is amazing. ठीक है, तो सर्टिफिकेट में सोशल मीडिया. ठीक है, तो मुझे अगर इसको फेसबुक पेज पर पोस्ट बनाना है, ठीक है, आई वांट के डायमेंशंस फेसबुक पोस्ट के अकॉर्डिंग आई कैन पिक एनी ऑफ दिस. ठीक है, एंड आई कैन कस्टमाइज इट, एंड आई हैव ऑल ऑप्शंस टू कस्टमाइज इट. आई हैव कि मैं इस पे जो है वो अपनी कस्टम इमेज लगा दूं बैकग्राउंड में, या फिर दिस आल्सो प्रोवाइड्स मी इमेजेस. ठीक है, दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. अपलोड कर सकते हो अपनी इमेज, पिक्चर लगा सकते हो इनकी. इन्होंने आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारी पिक्चर्स एचडी में दी होती हैं, वेरी हाई क्वालिटी पिक्चर्स होती हैं जिसकी पिक्सेल्स नहीं मिलती, दैट यू कैन हैव, एंड मोस्टली आर फ्री. फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप बर्गर हियर, तो फ्री है. ठीक है, जिन पे सिर्फ ये क्राउन बना है वो फ्री नहीं है, दैट यू नीड टू परचेज, द रेस्ट आर फ्री. और परचेज एज इन कि अगर आप परचेज नहीं करोगे तो इट विल बी जस्ट अ वाटरमार्क लाइक दिस. ठीक है, इस पे कैनवा लिखा होगा, तो अगर मैं इसका साइज छोटा करूँ तो वो भी नजर नहीं आएगा, और अगर परचेज करनी है तो दैट्स जस्ट फॉर $1. ठीक है, फिर यू हैव एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर शेप्स हो गए आपके, जो आप क्लिप आर्ट में आपको चीजें मिलती हैं, दैट्स एलिमेंट्स. देन यू हैव टेक्स्ट के ऑप्शंस. यू हैव बाय डिफॉल्ट आप किस तरह का रखना चाहते हो, अगर आप ये इनके कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज दीज. if you want to have any font, they have all the fonts. ठीक है, एग्जाम्पल इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो बहुत सारे ऑप्शन, इतने ऑप्शन है कि आई हैवंट आई बीन यूजिंग इट सिंस इयर्स एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज. सम आर पेड, मोस्टली आर फ्री. देन यू हैव म्यूजिक का ऑप्शन, आपको अवेलेबल है. ठीक है, बैकग्राउंड्स लगा सकते हो आप वीडियो में. बैकग्राउंड्स का अलग ऑप्शन है, दिस आर वीडियो, सॉरी. बैकग्राउंड का अलग ऑप्शन है, किस तरह का चाहिए, प्लेन चाहिए. ठीक है, देन यू हैव फोल्डर्स. देन यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, जब आप मोर में जाते हो, स्टाइल्स का. स्टाइल्स इसके आपको ऑटोमेटिकली आपकी कलर स्कीम और फॉन्ट खुद ब खुद सेट कर दें. दिस व्हाट स्टाइल डज. ठीक है, तो मैंने इसका फॉन्ट सब चेंज कर दिया. I can pick any. If I want only colors to be changed, I can use this. मुझे color scheme ये रखनी है, I can have this. मुझे fonts change करना है तो मैं कौन सा combination of fonts रखूँ, I can have this. I can have this. I can have anything. ठीक है. So this was Canva, and you can download it for free. If you don't want to download as a PNG, you have options to download as PDF file. कभी आपको brochures PDF में चाहिए होते हैं, presentations करोगे तो आपको वो उसका भी ऑप्शन देगा, आई थिंक PowerPoint का. जिफ भी कर सकते हो, MP4 की वीडियो भी कर सकते हो. ठीक है, so these are all the options and this is free of download. So this was Canva. If you have any questions, let me know before we move on to our next service. Okay, so no questions. Let's move on to our next service. Okay, which is Zoho Social. Now what Zoho Social does, Zoho Social is a platform जो आपको आपके social media platforms को connect करता है. ठीक है, it allows you कि आप अपने multiple social media networks पर एक साथ posting करें. ठीक है, I know कि जो जिन लोगों का Facebook pages हैं, they would say कि ये तो Facebook से भी हम कर सकते हैं posting, but आप इससे अपना LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook group सब control कर सकते हो. You just need to post once और वो हर जगह जाएगा. ठीक है, and this is absolutely free of cost. Access Zoho Social करते हैं direct. So this is gonna open Learnovate's Zoho Social profile.
अगर आप कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जाते हो तो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टूल। आप उनको बता सकते हो कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जो सोशल यूज़ कर सकते हैं। लेट मी ऑल्सो शो यू इट्स प्राइसिंग वगैरह व्हाइल इट्स ओपनिंग। अच्छा इसमें शेड्यूलिंग भी है पोस्ट की, बट शेड्यूलिंग इज फॉर द पेड वर्जन नॉट द फ्री वर्जन। फ्री वर्जन आपको अलाउ करता है कि आप अपने जो है वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को कनेक्ट करें, ठीक है। Here it is, free edition, ठीक है। पब्लिश ऑन ऑल नेटवर्क्स। लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर है पर्सनल प्रोफाइल, लिंक्डइन का जो है वो आपका कंपनी प्रोफाइल, ठीक है। फिर उसके बाद ट्विटर की प्रोफाइल, फेसबुक का पेज, फेसबुक का कोई ग्रुप है अगर आपका, और इंस्टाग्राम, ठीक है। ये सब आपको दे रहा है ये। अच्छा आई डोंट नो, अच्छा ये खुल गया, ग्रेट। सो दिस इज रनिंग वो। इसमें आई हैव लर्नोवेट का फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। लिंक्डइन आई डोंट थिंक हमारा कनेक्ट नहीं हुआ अभी फॉर नाउ। तो एक ऐड न्यू ब्रांड भी कर सकते हैं अगर आपका कोई और ब्रांड है। इसके अलावा कनेक्शंस में आप जाकर अपने सारे ऑल कनेक्शंस में आप देख सकते हैं लोग भी कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास मैसेजेस में जो है वो आपके सारे मैसेजेस आ सकते हैं कि क्या वो है, कितने लोग मैसेज कर रहे हैं। इससे आप बैठे बैठे अपने सारे सोशल मीडिया देख सकते हो, कौन मैसेज कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, लाइव ही आपको अपडेट भी करता है। देन यू हैव योर पोस्ट स्टैट्स, कितने पोस्ट की कितनी इंटरेक्शन है, क्या है। दिस इज फेसबुक का ग्रुप, दिस इज इंस्टाग्राम, सॉरी दिस इज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम इज हियर, या। सो दिस इज इंस्टाग्राम, कितनी इंटरेक्शंस आ रही हैं, कितने लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अगर कनेक्ट करना है आपको तो यू गो टू हियर, सॉरी सेटिंग्स एंड सोशल चैनल्स, ठीक है। सोशल चैनल्स पर जाकर आप अपने जो है वो सब कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं जो ये कनेक्ट करना अलाउ करता है, ठीक है। बैक टू होम, तो लाइव स्ट्रीम यहाँ पर है। अगर कोई मेरा पेज अभी भी लाइक करता है या मुझे कोई मैसेज करता है, मेरे यहाँ पर आ जाएगा। आई कैन ओनली ओपन दिस पेज एंड मुझे पता चल जाएगा कहाँ पर मैसेज आया है, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम ज़ोहो सोशल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस तो आप पूछ सकते हो, वरना वी मूव ऑन टू आवर लास्ट सर्विस, ठीक है। Okay, so if there are no questions, Assalamu yeah, okay. alaikum. Assalamu alaikum, Miss. Um, Miss, there are no questions, but I want to thank you from the behalf of Jinnah University for Women for giving us such valuable time. okay, thank you. थैंक यू सो मच। आई होप उनको कुछ उनको काम का लगा होगा, कारण उन्होंने जो है वो सीखने को काफी कुछ मिला होगा इससे। So moving on to the last service, which is waveapps.com, ठीक है। This is WAVE waveapps.com, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। दिस इज फॉर योर अकाउंटिंग, ठीक है। बिकॉज बिजनेस में यूजुअली अगर आपके 2-3 लोग होते भी हो तो आपको एक अकाउंट शीट मैनेज कर, 2-3 लोग भी नहीं हो, आप एक बंदा भी हो तो यू नीड टू हैव अकाउंट शीट के आपका क्या हो रहा है, कितने एक्सपेंसेस जा रहे हैं, आपका कितना क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, इनकम कितनी आ रही है और कितना आप खर्च कर रहे हो, कितने एक्सपेंसेस है। तो ये आपको इसमें हेल्प करता है, प्लस ये आपको इनवॉइसेस बनाने में हेल्प करता है। तो आई थिंक आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट फॉर दिस, तो लेट मी जस्ट साइन इन। मैं आपको एक
ओवरव्यू देती हूँ इसके इंटरफेस का, ठीक है। तो आई हैव साइंड इन और फिर मेरे पास ये आया है, ठीक है। साइन इन करके दिस इज माय डैशबोर्ड। आई डोंट रियली यूज इट। हम लोग का अभी तक सिर्फ गूगल शीट्स पे चल रहा है सारा बजटिंग, सो इस पे कुछ है नहीं। बट देन यू गो टू सेल्स, यू कैन क्रिएट योर इनवॉइस। अगर आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग इनवॉइस भेजना है अपने कस्टमर्स को, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप वो क्रिएट कर लें इसमें, ठीक है। दिस इज फॉर क्रिएटिंग एन इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस नंबर आप अपना कस्टमर वो डाल सकते हैं, कस्टमर का नाम, एड्रेस वगैरह, तो आइटम नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस इज वन थिंग जो आपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हो टू मेक इट लुक प्रोफेशनल। अच्छा, इसके अलावा द अकाउंटिंग थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें आप अपने सारा क्रेडिट और डेबिट कर सकते हो। नोट, एड इनकम करोगे तो आपका जो है वो पैसे आपने रिसीव किए वो आएंगे, और एक्सपेंस करोगे तो आपने जो खर्च किए आप वो रिकॉर्ड कर सकते हो किस चीज़ में किए। जब आपके मल्टीपल बिजनेस ओनर्स होते हैं, मल्टीपल टीम काम कर रहे होते हैं लोग, तो फिर आपको बहुत ज़रूरी होता है कि हर कोई जब अपना एक्सपेंसेस में डालता रहे ताकि इनमें मसला ना हो, ठीक है। वरना फिर पैसे कहाँ गए कहाँ आए, काफ़ी इश्यूज होता है। सो दिस इज फॉर स्मॉल बिजनेसेस जो कि स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको रिपोर्ट अगर चाहिए अपनी, तो आप ये मंथली रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। दिस इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, आपकी बजटिंग की चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, आसान करता है। सो दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस फॉर दिस ऐप? This was our last app, and we are done with today's session. मैम Yes. अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दें आप। Sure, मैं email address share कर रही हूँ। आप लोगों के कोई भी questions हो, you can reach out to me here. ठीक है, मैं chat box में लिख रही हूँ। And if you need help about anything else, ठीक है, तो let me know। अगर businesses से related कुछ आपको और इसमें help चाहिए, क्या कर सकते हैं। और मैं जो है वो आपके जो जितनी हमने आज डिस्कस की एप्लीकेशंस में उनके नाम यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आप उनको रिविजिट कर सकें। गूगल करके इसको सर्च करें, देखें, एक्सप्लोर करें। काफ़ी खुद एक्सप्लोरेशन काफ़ी आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आई स्टार्ट विद सबसे पहले हमने डिस्कस किया था गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, देन वी डिस्कस्ड Mailchimp platform for emails, sending emails and automated campaigns. Then we discussed Google Analytics जो हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करने में हेल्प करता है. Then we talked about Zoho Mail जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन के साथ मिल करता है, कंपनी नाम के साथ. Then we talked about Canva जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता है. Zoho Social जो आपका सोशल मीडिया पोस्टिंग करता है. And lastly Wave Apps जो आपकी जो है वो फाइनेंस को डील करता है. तो मैंने जो है वो चैट बॉक्स में मैं ये नाम भी डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसको लुकअप कर सकें, ठीक है ना. आई होप आप लोगों को ये यूजफुल लगा होगा सेशन. सो इफ देयर इज नथिंग एल्स देन गुड लक एवरीबॉडी. Thank you so much. Thank you so much, Tal, for your interesting session. And I'm just going to repeat the handles which we discussed today: Google Cloud, Mailchimp, Google Analytics, Zoho Mail, Canva, and Zoho Social and Wave Apps, right? Yeah. And I'd also like to thank Jimma University Women's Management and students and our sponsor FNF for taking out time and this valuable contribution. We'll be happy to take questions and feedbacks from you all.
मैं एक लिंक अटैच कर रही हूँ चैट बॉक्स में. इफ यू हैव एनी फीडबैक वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. द ट्रेनर्स विद अस, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. थैंक यू कायनात एंड थैंक यू फाइजा. There are no questions, but the workshop आवाज नहीं आ रही है थोड़ी सी. अगर हेलो. हेलो जी जी जी. हम स्टूडेंट्स वांट कि अगर उन्हें रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता तो दे कैन लर्न मोर, और ऑब्वियसली एक दफ़ा देखने से फिर उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रही होंगी. जी जी श्योर. I'll be sharing the recording जिस तरह मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी. मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी. वो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ आगे शेयर कर दीजिएगा. okay ma'am, thank you so much. वेलकम. Assuming there are no questions, हम अपने इस ट्रेनिंग का इख्तिताम यहाँ पे करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग गाइस. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.